हज़रात अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले आप सबको जश्न बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मुबारकबाद पेश करते हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا متاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأن البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا الله فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا الله إني أشم عندك راغية طيبة كأنها راغية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله يتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فادخلا معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل فقال السلام عليك يا الله فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا الله
إني أشم عندك راقية طيبة كأنها راقية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فعدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختار الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد إذنت لك فادخلا معهما تحت الكساء. فأقبلا عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راقية طيبة كأنها راقية أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم حاهما مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيم وخليفتي وصاحب لوائي، قد إذنت لك فادخلني تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد إذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وعما بيض اليمن إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي، لحم لحمي ودمح دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم
وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مديحا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمير جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل البيت النبوة ومعادن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وابنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سعادة؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى. يقرق السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مليحا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. فقد أذن لي أن أدخل معكم فأنتظروا رسول الله. فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمير وحي الله، إنه نام قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبي مصطفى بالرسالة نجي ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليكم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاض شيطنا ورب القعبة. فقال النبي: سعد يا علي والذي
بعثني بالحق نبي والصفان بالرسول نجي أما ذكرنا خبرنا هذا في محفل محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله حمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا تعلب حاجات إلا وقضي الله حاجاته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا وفعض وسعيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الأئمة 9 الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. نعرہ صلوات. उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना जाफर खान साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात. जो उलमा हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि बराए करम स्टेज पर तशरीफ ले आएं. जो उलमा हजरात यहाँ तशरीफ फरमा हैं उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं. मौलाना शकील साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ ले आएं. मौलाना कल्ब हसनैन साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो बराए करम वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं. मौलाना फरमान हैदर साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं.
देखिए, मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि जो हमारे शायर अहले बैत जनाब रज़मी सुल्तानपुरी साहब से गुजारिश है कि वो शाहनशीन पे थोड़ी देर के लिए ज़रूर हमारे पास आ जाएं। शायर अहले बैत जनाब आलम सुल्तानपुरी साहब, आवाज़ मेरी जा रही है क्या? शायर अहले बैत जनाब रज़मी सुल्तानपुरी साहब, शायर अहले बैत जनाब आलम साहब से गुजारिश है कि वो डाइस पे आ जाएं हम शोरा की हौसला अफजाई के लिए। हाँ, अच्छा माइक ज़रा सा टेस्ट कर लें, सब तक आवाज़ सही जा रही है? नहीं, माइक थोड़ा सा वॉल्यूम और तेज़ कीजिए, माइक कंट्रोलर। हाँ जी, आवाज़ अब सही गई। अच्छा, अब जरा सा आप लोग एक नारा सलवात बुलंद कीजिए ताकि देखें आपकी आवाज़ भी यहाँ तक। नारे तकबीर, अरे हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर, अल्लाह की किबरियाई, नारे तकबीर, आवाज़ भी टेस्ट कीजिएगा इसी में, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अरे आपके 1500 साला ईद मिलादुन नबी हमने मनाई है, जरा बुलंद करके अभी साहब जमाइया लेंगे, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अच्छा, अब जिसके लिए ये हाथ बनाए गए हैं मौला कायनात ने गाजी अब्बास के शानों के सदक़े में जिसको हाथ दिए हैं, हाँ अब देखिए यही सब टेस्ट होना जरूरी है ना। अब थोड़ा सा कुछ लगा कि भाई अब आवाज क्लियर है? अबूजर भाई बताइएगा आवाज। हाँ, अब असल नारा, असल में ये जो जब कलमा मुकम्मल होगा तभी तो आवाज खुलेगी। अब अली वलीउल्लाह की तरफ हम चलते हैं, जिनको शरण साहब मौला अब्बास के शानों के सदक़े में जिनको यदुल्लाह ने हाथ अता किए हैं, वो हाथों को बुलंद करें और ऐसे हवा में लहराएं कि गोया आपकी सदाएं गदीर की वादियों से गूंजती हुई नजफ अशरफ की दहलीज पे। अरे बाप रे बाप, जल तू जलाल तू भाई भला को डाल। ये अलग से, अरे बाबा, हाँ इनको जरा सा हाँ बांधे होते रहिएगा, जकड़े उकड़े रहिएगा आप। और भाई ठीक हो ना भाई? अब जरा सा खैर जश्न है तो नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब पूरे अकीदे के साथ, सुल्तानपुर और अमहट अकीदे की सरजमीन है, यहाँ के उलमा और यहाँ के शुअरा। हो सकता है लफ्जों में आप कुछ कह सकें कि कोई लफ्ज कमजोर रह गया, मगर अकीदे में कोई कमजोर नहीं मिल सकता। इसलिए इस सरजमीन में शहजादी का ये जश्न, और खास तरीके से हमारे कमर हैदर खान साहब, हमारे आलम खान साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, उनके वालिद गिरामी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आज से 3 साल पहले 20 जमात-उस-सानी को ये जश्न मुनक़िद किया और इसी तारीख से उन्होंने महल रिजॉर्ट्स का आगाज किया, इफ्तिताह किया। शहजादी के नाम की बरकत कि आज ये रिजॉर्ट दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता जा रहा है और इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ग्राफ एजेंसी की कसम, आप ये देखिए कि लोग ग्राफ एजेंसी पे लिख के पूछते हैं कि महल रिजॉर्ट्स, उसकी तारीख जश्न की कब है और कब लाइव होगा। तो मैं अबूजर भाई को अपनी निजामत के दोनों हाथों से सलाम अर्ज करता हूं। और जश्न चूंकि हमारी एक रिवायत, चूंकि शानदार रिवायत रही है, और वो शानदार रिवायत ये रही है कि एक जीशान, जी वकार, जी हशम, जी शौकत जनाब जीशान साहब तिल्लो काबा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, बहुत सरापा खलूस उनकी तकरीर से ही ये जश्न आगाज होता है। मैंने 2-4 जुमले सिर्फ तमहीद के कह दिए, गोया मैंने कुछ कहा नहीं, आपने कुछ सुना नहीं। अब जो बात होगी वो तकरीर के बाद ही होगी। लेकिन खिताबत के हवाले से ये जो खिताबत हमारे पास है, जो बनु हाशिम की खैरात है, दुनिया में किसी ओरेशन में ये ताकत, ये असर, ये कैफियत नहीं है। पढ़ के नहजुल बलागा और कुरान लोग अच्छे अदीब होते हैं, तेरे खुतबों का फैज है ज़ैनब, आज हमने खतीब होते हैं। शायर अहले बैत जनाबे कलीम असगर बिजनौरी साहब तशरीफ ले आए, बावाज़ बुलंद नारे सलवात से उनका इस्तकबाल कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए ये मेरा घर है। बचपन में मैंने यहाँ, वो जुलूस में कोई आया था
रिक्शे पे खड़े होकर तकरीर की थी, तो आज भी वैसे ही हूं, जो होगी इस्लाह कर दीजिएगा और कमियों को माफ कर दीजिएगा। अब मैं यहाँ से एक खिताबत के लिए क़िबला काबा ज़ीशान साहब को आवाज़ दूंगा और इस बीच में आप लोग दुरुस्त कर लीजिएगा। वो मेज़बान है भाई, ठीक है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं, जो हजरात बाहर हैं, उनसे हैदर भाई आप कहते रहिए कि वो लोग अंदर आकर बैठना है, काफ़ी इंतज़ाम है। अरे बाप रे बाप, फूल भी थोड़ी देर के लिए पत्थर लगने लगा था, मगर ऐसा लगा कि शहजादी के नाम ने पत्थर को फिर फूल बना दिया। आप लोग नारे सलवात के फूल बरसाएं। मोहम्मद, ये शहजादी का नाम, अभी जश्न शुरू हुआ नहीं और फूल बरसने लगे। आसमान से ये सितारे हैं जो गुलाब की पंखड़ियों पे शहजादी के नाम के सदक़े में खैरात बन के आज ज़मीन पे बरस रहे हैं। और ये सलीक़ा, ये तरीक़ा, ये वजीफ़ा जो सरमाए हयात भी है, सरमाए नजात भी है, ये सुल्तानपुर से लोग सीखें कि अक़ीदे के हवाले से ये कितना। आज तो मैं कह रहा था रज़मी भाई से कि 4 लेन बन गया है, सुपर हाईवे बन गया है, चाहे इधर से सुल्तानपुर आइए, चाहे उधर से सुल्तानपुर आइए, चाहे बनारस से आइए, चाहे लखनऊ से आइए, लेकिन जब सिंगल रोड थी तब भी अब्बास डे जैसा जैसा यहाँ पे हो गया है, और जो तारीखी शेर यहाँ की तरहों में आ गए हैं, दुनिया उन्हें भुला नहीं सकती है। आइए मैं खिताबत के लिए एक बंद के साथ आवाज दूंगा, मरसिये का बंद। हजरत उम्मीद फाजली ने कहा, हर दौर में ये दीन नबी के लिए सिपर, जागे तो मौत। अबूजर भाई यहाँ से महफूज कीजिए तस्वीर, ग्राफ, और यहाँ से जो पूरी दुनिया देखे कि सुल्तानपुर में कैसे जश्न मनाया जाता है, शायरी के साथ सिर्फ एक तकरीर, मगर कैसे आप सुनते हैं, हर दौर में ये दीन नबी के लिए सिपार, जागे तो मोहतरम है, जो सोए तो मोतबर, अब्बास में यही ज़ैनब में जलवागर, जारी है अब भी हैदर करार का सफर। अरे जब तक रहेगी नहजे बलागा निगाह में, इंसानियत रहेगी अली की पनाह में। मैं गुजारिश करूंगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना ज़ीशान हैदर खां साहब से कि वो तशरीफ़ ले आएँ और अपनी खिताबत से इस जश्न के आगाज़ की इजाज़त दें। वो तकरीर फरमाएंगे, आप लोग सलवात पढ़ें। हज़रात मोमिनीन सलाम अलैकुम। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ सुम्मा सलात अला रसूलिहिल करीम अर रसूलिल मुसद्दद वल महमूदिल अहमद वल मुस्तफ़ल अमजद हबीबुल इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल मुहकमिल किताब अहसनुल बयान क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमो अन्नल्लाह अस्तफ़ाके व तहरके व अस्तफ़ाके अला निसाइल आलमीन। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम व शुराए ज़ी वक़ार, तमाम सामीन इकराम, तमामी हजरात को इस रोज़े सईद की बामरकत पुरमसरत और इस अजीम तारीख की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आमद उस शहजादी आलमियान की है कि जय हम जैसा बशर
उनके नाम लेने के भी काबिल नहीं है। इसलिए ये वो ताहिरा बीबी हैं, वो मुकद्दसा बीबी हैं जिनकी सना अल्लाह करता है, सुनने वाले मासूमीन होते हैं। हम जैसा खाकी बशर क्या समझ पाएं सिद्दीक़ ताहिरा कौन है? हम जानते हैं, पहचानते नहीं हैं। नाम जानते हैं, पहचानते नहीं हैं। वो बाबरकत नाम है, वो बाइज्जत नाम है, वो अज़ीमुल मर्तबत। और इसी उन्वान के तहत मैंने एक मुख्तसर सी आयत सूरह आल इमरान की 42वीं आयत है, जिसमें मलाइका एक बीबी से इंतखाब कर रहे हैं। और वो खिताब क्या है? ऐ मरियम, अल्लाह ने आपको बरगुज़िदा किया, आपको चुन लिया, आपका इंतखाब कर लिया। पता चला कि कुछ ऐसी औरतें कायनात में आई हैं जिनका इंतखाब अल्लाह करता है, जिनका इंतखाब अल्लाह करता है, बंदे नहीं करते हैं। वो बात अलग है कि लोग अपनी मर्जी से किसी को चुन लें, लेकिन कुछ बीबियां ऐसी हैं कि जिनका इंतखाब अल्लाह करता है। यूँ तो कायनात में बहुत सी बीबियां हैं, बहुत सी अजमत वाली बीबियां हैं, बहुत सी मर्तबे वाली बीबियां हैं, मगर वो सिफात किसी और को नहीं मिले हैं जो दो बीबियों को मिले हैं। एक जनाब मरियम को, जिसको अल्लाह ने चुना है, और एक वो बीबी है जिसका नाम फातिमा ज़हरा है। सिर्फ दो बीबियों को अल्लाह ने चुना है, इंतखाब किया है। और मरियम के लिए कहा है, मरियम मैंने तुम्हारा इंतखाब किया, हमने तुम्हें चुन लिया तमाम आलमीन की निस्वा में। और मरियम क्या है? मरियम का एक लक़ब है जो हम लक़ब कहते हैं, जबकि ये लक़ब नहीं है। तवज्जो चाहता हूँ, मरियम लक़ब नहीं है, एक ओहदा है। मरियम ये लक़ब नहीं बल्कि एक ओहदा है। जैसे अंबिया ये ओहदा, इमामत ये ओहदा, नबूवत ये ओहदा, रिसालत ये ओहदा, खलीफा ये ओहदा, इसी तरीके से बतूल ये एक ओहदा है, ये नाम नहीं है, ये ओहदा है, अल्लाह ने अता किया है। जो अल्लाह जो है इसको चुनता है। जैसे नबी को अल्लाह चुनता है, इमाम को अल्लाह चुनता है, रसूल को अल्लाह चुनता है, खलीफा को अल्लाह चुनता है, इसी तरीके से कायनात की निस्वा के लिए। अब ये देखा, चूंकि निस्वा में नबूवत का मनसब नहीं था, इमामत का मनसब नहीं था, रसालत का मनसब नहीं था, खिलाफत का मनसब नहीं था, तो अल्लाह ने ये नाम दे करके इन्हें ये मर्तबा अता किया है कि हमने तुम्हें चुन लिया है कायनात के लिए, जिसे बतूल बनाया है। बतूल बनाया, तुम बतूल हो। बतूल कहते किसे हैं? बतूल के मीनिंग क्या है? बतूल वो है जिसे नमाज के लिए वुजू की जरूरत न पड़े। बतूल उसे कहते हैं जिसे नमाज के लिए वुजू की जरूरत न पड़े, ये है बतूल। और फिर मरियम क्या है? का बतूल है। का बतूल कैसे हैं? का बतूल इसलिए हैं कि ये पाक हैं, तैयब हैं, ताहिरा हैं, सिद्दीका हैं। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मरियम वो है कि जो अपने जमाने में कुफो नहीं रखती थी, इनका कोई कुफो नहीं था। तो मामला तो ये समझ में आया कि मरियम का कुफो नहीं था। मरियम क्या है? का पाक है, तैयब है, ताहिरा है। और एक लफ्ज क्या है? बतूल भी हो और उसके गोद में औलाद भी हो। तवज्जो है, बतूल भी हो, उसकी गोद में औलाद भी हो, तब जाकर के मुकम्मल बतूल बनती है, तब जाकर के मुकम्मल बतूल बनती है। ये देखिए कि मरियम के पास कुफो तो नहीं था। अल्लाह ने कहा मरियम तुम बतूल हो, तुम्हें हम बेटा देंगे, ताकि जमाना ये ना कहे कि मरियम में थोड़ा सा वक्त रह गया है इसलिए कि ये माँ नहीं थी, ये माँ नहीं बनी, इनका कोई बेटा नहीं था। अल्लाह ने कहा हम तुम्हें बेटा देंगे, भले ही कुफो ना हो मगर हम तुम्हें बेटा अता करेंगे, हम तुम्हें बेटा देंगे। मरियम को बेटा अता कर दिया। लेकिन यह भी एक कमाल था कि मरियम बगैर कुफो के माँ बनी, उनकी आगोश में बेटा आया। ये सैयदतुन निसाइल आलमीन का कमाल था कि शौहर रखते हुए भी बतूल बन गई।
शौहर के होते हुए भी बतूल बनी हैं। और यहीं से इनका मर्तबा बुलंद होता है कि मरियम जो है वो बतूल सुगरा है, फातिमा बतूल कुबरा है। मरियम बतूल सुगरा, फातिमा बतूल कुबरा, इसलिए कि मरियम का एक बेटा मासूम, ज़हरा के 11 बेटे मासूम हैं। ये वो बीबी हैं, ये वो अजमत हैं, ये वो कायनात की आलमियान हैं। लोग ये कहते हैं फटी हुई चादर, पेवन लगे हुए थे और एक लिबास था। अगर काश जमाना इस चादर को ही समझ लेता तो ये बातें न कहता। इसलिए कि जवाहिरात महाराजाओं, नवाबों, रईस, उमरा, इनकी औरतों को जीनत देते हैं दुनिया के जवाहिरात। ये अपनी जीनत दुनिया के हीरे और जवाहिरात से बनाती है। तवज्जो चाहता हूं, ये अपनी जीनत, अपनी खूबसूरती दुनिया की जवाहिरात, हीरे जवाहिरात, ये तमाम तरीके से वो जो पहनती हैं तो अपने आप को खूबसूरत दिखाती हैं और इसी पे नाज करती हैं कि हमारे बेबहा कीमती जेवर हम ये पहन के जाए हैं। जिस बस में जाती थी लोग उनके जेवरात को देखते थे और ये कहते थे ये नवाब के घर की हैं, ये राजा के घर की हैं, ये महाराजा के घर की हैं, ये अमीरों के घर की हैं, ये उमरा के घर के हैं, ये फला बड़े साहब के घर से आई हैं। देखिए इनके पास कितने लिबास, कितने जेवरात हैं, हीरे के जेवरात, इनके पास जो है वो सोने के जेवरात हैं, इनके पास जो है वो चांदी के जेवरात हैं। ये जमाने के हैं। यही तो सिद्दीक़ा ताहिरा बताना चाहती थी कि तुम्हारे जीनत जो दुनिया के जवाहिरात से है, याद रखो हमारी चादर का मुकाबला नहीं कर सकती, हमारी चादर का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए कि मैं फातिमा हूँ। तवज्जो चाहता हूँ जुमले पर, मैं फातिमा हूँ। फातिमा जमीन के उगले हुए जेवर को नहीं पहनती है। फातिमा जमीन के उगले हुए जेवर को नहीं पहनती है, इसलिए कि फातिमा के सदके में कायनात बनी है। फातिमा के सदके में कायनात बनी है। लिहाजा हमारे लिए ये जेब नहीं है कि हम जमीन के उगले हुए जेवर पहने। ये क्यों? ये अजीम मर्तबा, ये बीबी, ये वो अजमत है। अब एक चीज और है, कायनात में जो भी चीजें हमारे लिए सुन्नत बनी वो रसूल से बनी। कोई भी चीज हो वो हमारे लिए रसूल की सुन्नत। नमाज की तरतीब सुन्नत रसूल, रोजे के अहकाम सुन्नत रसूल, हज के अहकाम सुन्नत रसूल। जो जो अमल रसूल करते गए हमारे लिए सुन्नत बनता गया। तो अब ये बताइए कि एक चीज मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि अगर रसूल का हर अमल हमारे लिए सुन्नत बन रहा था तो जब जनाबे फातिमा ज़हरा हुजूर सरवरे कायनात के पास आती थी, हुजूर खड़े हो जाते थे, तो ये सुन्नत क्यों न बना? इसे भी सुन्नत बनना चाहिए था कि हर बाप पर ये रसूल की सुन्नत, ये रसूल की सुन्नत बननी चाहिए थी कि हर बेटी के सामने उसका बाप खड़ा होता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि रसूल ने अपनी बेटी के लिए खड़े होकर के हमारे लिए एक सुन्नत कायम कर दी है, हमारे लिए एक ऐसी सीरत कायम कर दी है। लिहाजा हर बाप अपनी बेटी के लिए खड़ा हो, हर बाप अपनी बेटी के लिए खड़ा हो। रसूल की सुन्नत है, रसूल की सुन्नत है। अजीजान मोहतरम, यही तो अल्लाह को बताना था। देखो कायनात की बेटियां और हैं, मोहम्मद की बेटी और है। सलात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। कायनात की बेटी और है, मोहम्मद की बेटी और है। हर बेटी अपने बाप के लिए उम्मे अबीहा नहीं है। हर बेटी अपने बाप के लिए उम्मे अबीहा नहीं है। ये फातिमा है जो फकत अपने बाप के लिए उम्मे अबीहा है। ये फातिमा है फकत तन्हा कायनात में। और ये बता दिया गया है कि देखो फातिमा की अजमत ये है,
कि जहां फरिश्ते आते हैं, जहां आते तो हैं फरिश्ते, मगर ये नहीं बताते कि मैं फरिश्ता हूं, ये नहीं बताते कि मैं फरिश्ता हूं। 3 मकामात ऐसे हैं कि जहां फरिश्ते नहीं पहचाने गए। तवज्जो किबला नहीं साहब, 3 मकामात ऐसे हैं जहां फरिश्ते नहीं पहचाने गए। एक, जब जनाब इब्राहिम के दस्तरखान पर फरिश्ते आए बशर की शक्ल में, तो जनाब इब्राहिम फरिश्ते को नहीं पहचान पाए। उन्होंने बकरे को ज़िबा किया, पकाया, दस्तरखान चुना, सामने ला के रख दिया, हुजूर बिस्मिल्लाह। अब उनके लिए मजबूरी हो गई कहना, उनके लिए बताना मजबूरी हो गई, बताना मजबूरी हो गई। आए तो है मेहमान बनकर, खाने का एहतमाम है, दस्तरखान चुन दिया गया है। इब्राहिम खलीलुल्लाह कह रहे हैं बिस्मिल्लाह, खाना नोश फरमाइए। अब वो कह रहे हैं मैं नहीं खा सकता, मैं नहीं खा सकता। कहा क्यों नहीं खा सकते? कहा इसलिए कि अल्लाह ने हमारे अंदर खाने की ख्वाहिश नहीं रखी, हमारे अंदर खाने की ख्वाहिश नहीं रखी। अब जनाब इब्राहिम ने कहा कि कायनात में फकत वो शख्सियतें हैं जो फरिश्ते हैं जिसको अल्लाह ने खाने की ख्वाहिश नहीं रखी। अब इब्राहिम ने पहचाना कि ये बशक्ल जो इंसानी आए थे ये फरिश्ते थे। दूसरा मकाम, जनाब सुलेमान अपने सल्तनत का नजारा कर रहे थे। मलकुल मौत आ गए, जरा सी अना कर दी थी, मेरी सल्तनत, मेरी सल्तनत। अल्लाह ने कहा मलकुल मौत जाओ और जा करके सुलेमान की रूह उसी तरीके से खल करो जिस आलम में सुलेमान है। आए मुकत्ता चुकत्ता, लंबी दाढ़ी, लंबा कुर्ता पहने हुए एक अजीमुल मर्तबा शख्स, ऐसे शख्सियत के दारी आए। कौन हो? क्या तुम तक हमारा हुक्म नहीं पहुंचा? मैंने क्या कहा था? आज मेरे महल में मेरे हुक्म के बगैर कोई दाखिल नहीं हो सकता। जैसे कहा मेरे महल में मेरे हुक्म के बगैर कोई नहीं दाखिल हो सकता। कहा अल्लाह ने मुझे भेज दिया है ताकि तुम्हें बताया जाए कि मैं वो हूं जिसे किसी के दरवाजे पर इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। जब ये कहा अच्छा तुम मलकुल मौत हो, हम तो तुम्हें अब पहचान रहे हैं, यह मंजिल आई। तीसरा मकाम वो है जहां फरिश्ते नहीं पहचाने गए। वो मंजिल क्या है? कहा वो जब जनाब इब्राहिम जनाब इस्माइल को लेकर के जा रहे थे और फरिश्ता आया और आकर के कुछ कहना चाहता था। जनाब इब्राहिम ने देखा और देखने के बाद थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर तक फरिश्ते को नहीं पहचान पाए, मगर जब देखा कि हाँ ये तो कोई और नहीं है, ये फरिश्ता है, एक मरतबा कहा मैं पहचान गया तुम जिब्रील हो, मैं पहचान गया तुम जिब्रील हो। कहा नबी अल्लाह आपने पहचाना कैसे? कहा इसलिए कि इस आलम में जिस कैफियत में मेरी छुरी थी वो सिवाय मलक के और कोई नहीं बचा सकता था। ये लेकिन आप देखें ये नबी हैं, लेकिन फरिश्ते को पहचानने में इनको थोड़ा सा देरी लगी, थोड़ी सी देर महसूस हुई। लेकिन मैं कहता हूं ये फरिश्ते आए हैं, नबी के दरवाजे पर आए हैं, मरियम के दरवाजे पर भी आए हैं, मरियम ने भी नहीं पहचाना। मरियम के दरवाजे पे भी फरिश्ता आया, जैसे कहा कौन हो तुम? कहा ना रसूल रब्बिक, मैं अल्लाह का रसूल हूं। कहा क्यों आए हो? कहा मैं तुम्हें बेटा देने आया हूं, मैं तुम्हें बेटा देने आया हूं। कहा तुम कौन? तुम मुझे बेटा? कैसे बेटा? मेरे पास तो शौहर नहीं है। कहा यही तो अल्लाह की मसलहत है, मैं तुम्हें बेटा देने आया हूं। जब ये कहा मैं तुम्हें बेटा देने आया हूं, कहा तुम कौन हो? कहा मैं जिब्रील हूं। कहा मैं जिब्रील हूं, बताया कि मैं जिब्रील हूं। अब अजीजान मोहतरम ये देखिए यहां नाम बताया, फरिश्ते ने अपने पद बताया, फरिश्ते ने अपना जो नाम बताया, मैं फरिश्ता हूं, मैं जिब्रील हूं, नाम बताया, अपना होदा बताया, नाम बताया, अपना होदा बताया। आइए दरे ज़हरा पे आए। अब दरे ज़हरा पर जब फरिश्ता आया है, एक मरतबा दकुल बाब किया, फिजा ने दरवाजे से कौन? कहा अना खय्यातुल हसनैन। एक मरतबा जैसे कहा अना खय्यातुल हसनैन, फिजा ने कहा ए जिब्रील मैं तुझे पहचान गई, तू दर्जी नहीं है, तू जिब्रील है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
अब अज़ान मोहतरम, जिसके दर की कनीज ऐसी हो उसकी मलका कैसी हो। ये फिजा है जो कह रही जिब्रील अपना नाम क्यों बदल रहा है, आज अपना ओहदा क्यों बदल रहा है। मैं फिजा हूं, मैं पहचान नहीं हूं कि तू खैयात नहीं है, तू जिब्रील है, तू जिब्रील है, जिब्रील बनकर के आए। ये फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि कनीज है जिसमें इतनी, यही तो वजह है कि जनाब सलमान ने एक दिन पूछ लिया, फिजा जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा, जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा। जनाब फिजा ने फरमाया मैं जाऊंगी जन्नत में। तवज्जो चाहिए, जनाब फिजा ने क्या फरमाया, मैं जाऊंगी जन्नत में। जनाब सलमान थोड़ी देर के लिए सख्ते में पड़ गए, फिजा कहां और कहां कह रही है मैं सबसे पहले जन्नत में जाऊंगी। कहा फिजा अपनी अजमत तो पहचानो, मैं जानता हूं कि तुम खाने ज़हरा में रहती हो, तुम्हारा मर्तबा बुलंद है, मगर ये क्यों कह रही हो। कहा रसूल से भी पहले। कहा जी रसूल से भी पहले। कहा अली से भी पहले। कहा अली से भी पहले। कहा फातिमा से भी पहले। कहा फातिमा से भी पहले। जब ये देखा तो सलमान और जरा सख्ते में आ गया। अभी तक तो ये मामला था कि ये कह रहे थे कि मैं जन्नत में पहले जाऊंगी, लेकिन अब तो कह रहे मैं रसूल से भी पहले, मैं अली से भी पहले, मैं फातिमा से भी पहले। जब ये कहा अब उनके चेहरे पर थोड़ा और पेशानी पर बल आने लगे, आगे बढ़े, मस्जिद में पहुंचे, क्या देखा हुजूर सरवरे कायनात तशरीफ फरमा है, देखा सलमान आ रहे हैं, पेशानी पे बल है। सलमान ये पेशानी पे ये तुम्हारे बल क्यों नजर आ रहे हो, क्या बात है, फिजा से कोई झगड़ा हुआ है, क्या मामला है। एक मरतबा गया था, लेकिन या रसूल अल्लाह फिजा बड़ी बड़ी बातें करने लगी हैं, बड़ी बड़ी बातें करने लगी हैं, बड़ी बातें करने लगी हैं। कहा क्या मामला है। कहा आज तो वो दावा कर लिया फिजा ने जो अभी तक किसी ने दावा नहीं किया। कहा क्या कहा फिजा ने। कहा रसूल अल्लाह, फिजा ने कहा जन्नत में सबसे पहले मैं जाऊंगी, न रसूल जाएंगे, न अली जाएंगे, न फातिमा जाएंगे, सबसे पहले मैं जाऊंगी। रसूल मुस्कुरा के उठे, सलमान का हाथ पकड़े, फिजा के पास लेके, फिजा तुमने क्या कहा। कहा रसूल अल्लाह जब तक वही नहीं होती वह मैं ही नहीं बोलती, जब तक वही नहीं होती मैं वही नहीं कहती। का मतलब ये है कि आप ही ने तो फरमाया था कि फिजा बरोज़े हश्र, जब हश्र का हंगाम सजेगा और वहां पर एक निदा दी जाएगी, अहले महशर अपने अपने निगाहों को झुका लो, इसलिए कि अब फातिमा की नूरानी सवारी आने वाली है। उस नूरानी सवारी के आगे जो मेहार पकड़े होगी उसका नाम फिजा होगा, उसका नाम फिजा होगा। या रसूलुल्लाह अब ये बताइए मेहार पकड़ के पहले कनीज आगे जाती है या शहजादी आगे जाती है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाखिर दामान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना ज़ीशान हैदर खान साहब, आपने जश्न का आगाज़ कर दिया और अब मैं शायनशीन से तमाम उलमाए कराम से शोरा से इजाज़त लेते हुए ये जश्न शुरू करने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अरबाब इल्म, अरबाब अदब, अरबाब मेहराब, अरबाब मिंबर, अरबाब कलम, अरबाब ज़बान, अरबाब शेर, अरबाब शऊर, अरबाब नक़्द, अरबाब तहक़ीक़, अरबाब सियासत, अरबाब समाज, अरबाब विला, अरबाब ग़ज़ा, अरबाब अमहट, अरबाब सुल्तान। सलामुन अलैकुम। आप सबको ये जश्न, ये ईद शहजादी ये जन्नत की आमद आमद बहुत बहुत मुबारक हो। ये तीसरा बरस है। देखिए अल्लाह ने अपने हबीब से कहा है मेरे हबीब मैंने पूरी कायनात तुम्हारे सदक़े में बनाई और सबको तुम्हारे कदमों में लाके बिठाया। अगर शहजादी का जश्न हो और सुल्तानपुर रिजॉर्ट्स के सब्ज़ाज़ार पे कुमकुमों के बीच में अपना वक्त गुजार के चला जाए और शहजादी के जश्न में अंदर यहाँ ना आए तो उसकी शिरकत कैसे बाहर हो सकता है। काफ़ी भी मिल रही हो सकता है आपको आइसक्रीम भी मिल रही हो, लेकिन अंदर तो कौसर तकसीम हो रहा है, अंदर तस्नीम बट रही है, अंदर सलसबील बट रही है, अंदर आपके मोहब्बतों का जमजम छलक रहा है, अंदर ये जो आपको सरमाया आखिरत मिल रहा है ये आप तरस जाएंगे। इसलिए मेरी आवाज़ का फैलाव सुल्तानपुर में जहाँ जहाँ तक है, महल रिजॉर्ट्स के सब्ज़ाज़ार पे हो,
या महल रिजॉर्ट्स के गेट पे हो, दीवारों के उस पार हो, मेहराबों के बीच में हो, दरवाज़ों के पास लगे हुए हों, जितने लोग हैं बड़ी मोहब्बत आप लोग आने लगे, बहुत शुक्रिया। ये अमहट के लोग, अगर मेरी आवाज़ ग्राफ के या आप यहाँ के मकामी चैनल्स के ज़रिए से अमहट तक पहुँच रही हो, सुल्तानपुर तक पहुँच रही हो, आसपास की बस्तियों में दयार में पहुँच रही हो, काफ़ी इतनी जल्दी मैं तकरीर ख़त्म करने वाला नहीं हूँ। उसको अगर वो आइसक्रीम भी हो जाएगी तो एक बार फिर उसे चाय बनना पड़ेगा, उसे गर्म होना पड़ेगा। मैं 5-10 मिनट की गुफ्तगू के बाद ही गुफ्तगू शुरू करूँगा, लेकिन जश्न है ये शहजादी का। जरा मेरे साथ नारा हैदरी। अभी सुल्तानपुर में जश्न नहीं आया, जरा दोनों हाथों को बुलंद करके नारा खैबारी। अरे जरा सुल्तानपुर वाला नारा, नारा हैदरा। ये मौला कायनात का ये मर्दाना नारा है। अब यहां से मैं जश्न शुरू करता हूं। अल्लाह ने कहा है मेरे हबीब, ये उलमाए किराम, मैं यहां से आवाज देना चाहता हूं, ए मेरे हबीब, मैंने तुम्हें रिसालत बगैर मांगे दी, नबुवत बगैर मांगे दी, अजमत बगैर मांगे दी, फजीलत बगैर मांगे दी, जमीन बगैर मांगे, आसमान बगैर मांगे, सितारे बगैर मांगे, चांद को 2 टुकड़े करने की अदा बगैर मांगे दी, सूरज बगैर मांगे दिया, दरिया बगैर मांगे, समंदर बगैर मांगे, कहकशां बगैर मांगे, मेराज बगैर मांगे, हिजरत बगैर मांगे, फतेह मक्का बगैर मांगे, सुलह हुदैबिया बगैर मांगे, मक्का बगैर मांगे दिया, मदीना बगैर मांगे दिया, काबा बगैर मांगे दिया, आयतें बगैर मांगे दी, सूरतें बगैर मांगे दी, कुरान बगैर मांगे दिया, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, सब कुछ बगैर मांगे दिया। मगर 2 अज़मतें और फजीलतें ऐसी हैं जिनको लेने के लिए तुम्हें मेरे घर पे आना पड़ेगा। मेरे 2 घर हैं, एक जमीन पे एक आसमान पे। जमीन वाले घर का नाम काबा है, आसमाने वाले घर का नाम सिदरतुल मुंतहा है। अगर अली जैसी फजीलत चाहिए तो 13 रजब को मेरे घर काबे में आना पड़ेगा। फातिमा ज़हरा जैसा नूर चाहिए तो फिर आसमान पे सिदरतुल मुंतहा में आना पड़ेगा। आसमान की बात आई तो आसमान फूल बरसा रहा है और जमीन दरूद बुलंद करे। मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या जश्न है, जश्न को जश्न की तरीके से मनाना चाहिए। इसको बाद में चाहे आप एडिट वगैरह कर लीजिएगा, मेरे 2-4 जुमले बीच से हटाइएगा, मगर रवानी के साथ जो बात मैं करना चाहता हूं, जब हमने दुनिया में औरत की सूरत हाल पे गौर किया तो खुद मेरा नबी जिस मक्के में आया उसमें एक समाज वो था जो कहता था कि अगर बेटा पैदा हो जाए तो उसे सर का ताज बना लो, लेकिन बेटी पैदा हो जाए तो फिर जरा समझ के जरा नुक्ता कमाल पे पहुंचे वहीं पे। असल में ये बच्चा जो है, हाँ इसको रोक दीजिए, इसको ये नहीं पता कि मिसरा कहाँ उठाया जाता है, पहले ही उठाया देता है तो फिर मिसरे का आखिर गिर जाता है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। थोड़ा सा तरबियत वक्त लगेगा, जरा सा वक्त लगेगा। फूल तो इस जश्न के हैं मगर हाथ इस जश्न के अभी नहीं लग रहे हैं, तो धीरे धीरे ये बच्चा जो है वो समझ में आ जाएगा। राह पर उनको लगा लाए तो हैं बातों में और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। तो हमने जब औरत की सूरत हाल पे गौर किया तो मेरा नबी जिस मक्के में आया उसमें एक कुफार का वो दौर था, वो जमाना था जो ये कहते थे कि बेटा पैदा हो तो सर का ताज बना लो, खानदान का वारिस बना लो, लेकिन बेटी पैदा हो तो उसकी गर्दन दबा दो, जमीन में जिंदा दफन कर दो, उसको जीने का कोई हक नहीं है। दूसरा यहूदियों का समाज था तौरात पढ़ने वाला, उसने कहा औरत को इल्म मिलना चाहिए, लेकिन इल्म को मिलने की एक लिमिट है। अगर वो तौरात पढ़ना चाहे तो या तो तौरात जला दो या औरत को जला दो, लेकिन पढ़ने का राइट सिर्फ मर्द को है, औरत को नहीं है। ईसाई एक तबका था जो बाइबल पढ़ता था, वो ये कहता था कि जन्नत से मर्द को निकलवाने वाली का नाम औरत है, इसलिए अब हम जन्नत में औरत को जाने नहीं देंगे। वो इस दुनिया में तो मर्द के साथ जिंदगी गुजार सकती है मगर जन्नत में हमारे साथ नहीं जाएगी। ये औरत की सूरत हाल थी, ये औरत के साथ सलूक होता था। यही नहीं, हम ईरान की सरजमीन में ताशकंद और बुखारा और तिर्मिज़ और समरकंद से पहले की सरजमीन पे जब गौर करते हैं तो हमने देखा कि वहाँ औरत और दौलत बराबर थी, जैसे चाहो कमाओ और जैसे चाहो बांटो। ये क़ब्ल इस्लाम का तरीका था। जब हम और उधर तराबलस से होते हुए सीरिया की तरफ गुजरते हैं तो औरतों पे वाजिब था कि अगर मर्द की सवारियां निकलें तो अपने गेसुओं को जमीन पे बिछा दें और मर्द उन्हें रौंकते हुए चले जाएं। यही नहीं, मिस्र में जब बाढ़ आती थी और वहाँ नील देवी जो हैं वो नाराज हो जाया करती थी तो उनको शांत करने के लिए औरत की बलि चढ़ाई जाती थी। औरत की गर्दन काट के जब तक नील में नहीं डाली जाती थी बाढ़ वापस नहीं जाती थी। ग्रीक्स में शहर ट्राय के किनारे यूनान में हमने देखा कि जब आसमान पे
घटाएं नाराज होती थीं तो उनकी देवियां उस वक्त तक नहीं मानती थीं जब तक औरत और दोशीज़ाएं उनको कुर्बान करके नहीं दी जाती थी। हमने नेपाल में अपने सरजमीन के आसपास में देखा और यहाँ चाइना से होते हुए कि चाइना में छोटे छोटे पैर औरत के पसंद थे, इसलिए लोहे की जूतियां पहना दी जाती थी कि औरत के पांव बड़े न होने पाए और जिंदगी भर उस लोहे के पैर की बेड़ी से वो आज़ाद नहीं हो पाती थी। औरत की सूरत हाल जहाँ है जिस जगह है, और मेरे सामने मैं देख रहा हूँ राहुल सिंह चौहान अपने लैपटॉप की उंगलियों में हरफों के घरों में लफ्ज़ों की हवेलियां और रास्ते बनाते हुए मुझसे पूछना चाहते हैं और सवाल कर रहे हैं कि हमारे मजहब में तो औरत की औरत को देवी का सम्मान दिया जाता है और उनका जो महिमा मंडल हमारे यहाँ वेदों में है वो दूसरे मजहबों में नहीं है। मगर मैं उनको बताना चाहूँगा कि तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि जैसे ही मर्द दुनिया से चला जाए तो औरत सती हो जाती है, उसे जीवन गुजारने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है, वह उसी चिता में अपने आप को ख़त्म कर दे और फिर अगर है तो वो अपशगुन मानी जाती है। दुनिया की इस सूरत हाल में आज हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, एजुकेशनल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सोशल एम्पावरमेंट की बात करते हैं और समाज के तमाम तर तबकों में औरत के इम्तियाज़ की बात करते हैं। सलाम हो उस कायनात के रसूल पे जिसने बगैर तलवार उठाए, जिसने बंदूक चलाए बगैर, जिसने तोप चलाए बगैर दुनिया में एक ऐसा ब्लडलेस रिवोल्यूशन, एक रक्तहीन क्रांति, एक गैर खूनी इनकलाब ऐसा बुलंद किया है कि जिसने रिसालत का कलमा बाद में पढ़वाया, सदाकत और अमानत का कलमा पहले पढ़वाया, उसने बड़ी खामोशी के साथ अपनी बेटी को माँ कह के अस्सलामु अलैका या उम्मु अबीहा कह के सरापा ताज़ीम में उठ के बताया कि बेटी की इज्जत क्या है, औरत की इज्जत क्या है, इस्मत की अजमत क्या है, फातिमा की अजमत क्या है। सलवात भेजे मोहम्मद। यही नहीं, चूंकि वो अपनी जबान से कुछ नहीं कहता था, वमा यंतक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अल्लाह को भी उससे इतना प्यार था कि मोहम्मद को बशर कहना गवारा नहीं था। हजारों हम उस खुदा के लिए जिसने किसी बशर को पकड़ के रसूल नहीं बना दिया, लेकिन बशर की हिदायत के लिए भेजना था, इसलिए उसने सरापा रिसालत को बशर बना के भेजा। मुस्तफा नूर हैं, क्या उनको नजर देख सके, जिस्म तो इसलिए पाया कि बशर देख सके। उसने मेरे नबी को यासीन कहा, वद्दुहा कहा, मुज़म्मिल कहा, ताहा कहा, वशम्स कहा, वल कमर कहा, वन्नूर कहा, वस्सिराज कहा, वमा यंतक़ु अनिल हवा कहा, वमा रमैतु इज़ा रमा कहा, तौरात में ओहीद कहा, ज़बूर में माही कहा, इंजील में अहमद कहा, मोहम्मद में सिर्फ 4 मरतबा कुरान कहा। उसने जब भी रसूल का तारुफ चाहा तो कहा वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल। मक्की है अपनी जगह, मदनी है अपनी जगह, करशी है अपनी जगह, बताही है अपनी जगह, खानदान है अपनी जगह, कौम है अपनी जगह, कबीला है अपनी जगह, जबान है अपनी जगह, किसी का बेटा है अपनी जगह, किसी का भतीजा है अपनी जगह, ये सारी अजमतें अपनी जगह, मगर मोहम्मद सिर्फ मेरा रसूल है। मगर जब चादर के नीचे 5 मोहम्मद आ गए, जिब्रील ने पूछा पालने वाले ये कौन है, तो कहा हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा, वो फातिमा हैं, फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा का बड़ा शहजादा है, फातिमा का छोटा शहजादा है, फातिमा की आने वाली नस्लें हैं। जबकि हम जमा का सेगा है, अरबी में हिया कहा जाता है। 14 साल सुल्तानुल मदारिस और 3 साल मदरसतुल वाइज़ीन की दाल रोटी खाने के बाद अरबी ग्रामर पे बात करने का आज जी चाहता है कि मैं अर्ज करूं कि ये ग्रामर के एतबार से तो हिया फातिमा होना चाहिए था। हम फातिमा कौन सा ग्रामर इस्तेमाल हो रहा है, कहना चाहिए था ये फातिमा है, इसलिए कि सिंगुलर में अकेली औरत फातिमा है, बाकी 13 के 13 मर्द हैं। मगर मर्द का सेगा इस्तेमाल करके अल्लाह कह रहा है हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। इसका मतलब फातिमा को सिन्फ और जेंडर में तकसीम नहीं किया जा सकता। अल्लाह बताना चाह रहा है कि चादर के बाहर हो तो 14 के 14 सबके सब मोहम्मद, चादर के अंदर हो तो सबके सब फातिमा। जो लिख देते हैं वो पढ़ते नहीं, जो पढ़ देते हैं वो लिखते नहीं। तरतीब में तब्दीली हुई उधर से, इसीलिए मैंने आपको बिठाया था। आ जा, हाँ कोई वही आए तो फिर वो वही बता दे।
आज 12 दिसंबर, क्या शान है। 12 इमाम के चाहने वालों सलवात भेजो तो मर्तबा बताऊं। तारीख 12, महीना 12, 2025, 2 2 5 बराबर 9, फातिमा 100, फे 80, अलिफ 1, तोए 9, मीम 40, हे 5 बराबर 1, 3 5 बराबर 9। ये 9 से 9 की तादाद के आदाद की जो इस्तेदाद बता रही है कि जो रिजल्ट 9 से रिश्ता जोड़ लो उसे दुनिया की कोई ताकत काट ही नहीं सकती। 9 एकन्नम 9, छोड़ा और जोड़िएगा साहब। 7 2 9, 3 6 9, 4 5 9, 5 4 9, 6 3 9, जहां से काटिएगा 7 2 9, 9 को दुनिया की कोई ताकत, 8 1 9, दुनिया की कोई ताकत 9 को काट नहीं सकती। ये पहला आदत हज़रत फातिमा की खैरात है। यही नहीं, आप सोचेंगे ये लड़का लेके कहां से आ गया। ये कुरान ने हमको टिग्नामेंट्री दी थी राहुल, टिग्नामेंट्री ऑफ द कुरान। ये कुरान का फार्मूला बताता हूं। कुरान की एक डिक्शनरी इल्मुल आदात पे है जिसे कंप्यूटर की दुनिया अब ऑपरेट कर रही है। कुरान ने 1000 साल यानी 1500 साल पहले बताई थी। जो दिन 365 कुरान की किसी आयत में नहीं, लेकिन लफ्ज यौम कुरान करीम में 365 मरतबा है। शहर मंथ को अरबी में शहर कहते हैं, महीने 12 किसी आयत में नहीं लिखा है मगर कुरान में मौजूद है। लफ्ज शहर कुरान करीम में 12 मरतबा आया। सात माने घंटा, दिन में 24 घंटे होते हैं। कुरान करीम में लफ्ज सात गूगल से सर्च करो बच्चों, 24 मरतबा। अरे भाई आज 12 दिसंबर है, 12 12 12 वाले बैठे हुए हैं। अब इमाम के बारे में भी झगड़ा ना करो। देखो कुरान में कै मरतबा आया है। 12 मरतबा लफ्ज इमाम आया है तो इमाम 12। सजदा, दिन में 17 रकातें वाजिब हैं, हर रकात पे 2, 34 मरतबा सजदा वाजिब है। पूरे कुरान करीम को गूगल से सर्च करके देखो या खुद उठा के एक एक लफ्ज निकाल के देखो। लफ्ज सजदा कुरान करीम में 34 मरतबा आया है। लफ्ज आखिरत कुरान करीम में 115 मरतबा आया है। आदाद और तादाद के बैलेंस से भी कुरान अपने फसाद और बलागत को जाहिर करता है, मौजज़े दिखाता है। लफ्ज आखिरत कुरान करीम में 115 मरतबा। लफ्ज दुनिया भी कुरान करीम में 115 मरतबा। इसका मतलब दुनिया के बगैर आखिरत नहीं, आखिरत के बगैर दुनिया नहीं। अर्ज कुरान करीम में 71 मरतबा। साइंस में नहीं जा रहा हूं, आदात खाली बता रहा हूं। आज समा कुरान करीम में 71 मरतबा। लफ्ज इल्म कुरान करीम में 811 मरतबा। लफ्ज ईमान वाल इरफान कुरान करीम में 811 मरतबा। इसका मतलब ईमान के बगैर इल्म इल्म नहीं, इल्म के बगैर ईमान ईमान नहीं। लफ्ज शैतान कुरान करीम में 68 मरतबा और लफ्ज पनाह 68 मरतबा। ये कुरान करीम का जिंदा मौजज़ा कि जितनी मैं शहजादी की अजमत बयान कर रहा हूं, खाली गिनतियां नहीं गिना रहा हूं। दाएं बाएं मत चले जाइएगा। कुरान का फार्मूला निकला कि जितनी चीजें हैं उतनी मरतबा उस लफ्ज का इस्तेमाल है। अगर दिन 365 हैं तो लफ्ज यौम 365 मरतबा, महीने 12 हैं तो लफ्ज शहर 12 मरतबा, इमाम 12 हैं तो लफ्ज इमाम 12 मरतबा, घंटे 24 हैं तो लफ्ज सात कुरान करीम में 24 मरतबा, सजदे 34 हैं तो कुरान करीम में लफ्ज सजदा 34 मरतबा। उस पूरे कुरान करीम में इन्ना आतैना
जिंदगी में एक बार कुरान करीम ने इस्तेमाल किया, दोबारा कहीं नहीं। लफ्ज़ कौसर एक मर्तबा, दोबारा कहीं नहीं। इन्ना शानिया का एक मर्तबा, दोबारा कहीं नहीं। लफ्ज़ वनहर कुरान करीम में एक मर्तबा, दोबारा कहीं नहीं। लफ्ज़ अबतर कुरान करीम में एक मर्तबा, दोबारा कहीं नहीं। अगर बेटियां 4 होती तो इन्ना आतैना का भी 4 मर्तबा आता, शानिया का भी 4 मर्तबा आता, वनहर भी 4 मर्तबा आता, कौसर भी 4 मर्तबा आता, अफजल अरे अबतर का लफ्ज भी कुरान करीम में 4 मर्तबा आता। अरे कुरान अपनी थ्योरी टिग्नामेंट्री अपने फार्मूले से साबित कर रहा है। मोहम्मद की इकलौती बेटी का नाम फातिमा है। पांच मर्तबा इसने फूल बरसाया। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। इतनी टाइम नहीं लगता है, बस टाइम नहीं लगता है हुर बनने में। देख रहे हैं आप, 9:25 पे आया था, 9:26 पे मुसलमान हो गया। आइए जश्न शुरू करते हैं। हमारा उसूल यह है कि सबसे पहले हम चूंकि जो हमारे बच्चे हैं ये फूल है, तो जो हमारे फूल हैं, फूलों को सबसे पहले मौका मिले। फूल बरस रहे हैं तो जो हमारा फूल है, अगर हम सबसे पहले बड़ों को बुलाएं तो उसके हौसले का क्या होगा। तरतीब में इसीलिए हमारे शम्स साहब ने तब्दीली की थी। असल में शम्स ही से तो फूल खिलता और मुरझाता है। सूरज की पहली किरण पड़ती है, फूल खिल जाता है। सूरज की आखिरी किरण पड़ती है, फूल मुरझाने लगता है। तो आइए मैं गुजारिश करूंगा शायर अहले बैत जनाब वसी अब्बास से, और थोड़ा सा हम जो है वो हमद के 4 मिसरे खुद भी पढ़ दें, वरना ये होगा कि तकरीर से काम चला दिया। निजामत बराबर से होनी चाहिए और ज़्यादा वक्त नहीं। अच्छा, मैं उससे भी कहूँगा, कभी कभी जो है वो जो पहले नंबर पा जाते हैं वो ज़्यादा सोचते हैं कि मौका है फसल काट लो, तो मैंने भी थोड़ा सा अगर ज़्यादा कर दिया हो तो माफ़ी चाहूँगा। मगर इस जश्न का अपना मिजाज है कि जिस तारीख में ये जश्न शुरू होता है उसी तारीख में मुकम्मल हो जाता है। फिर 13 दिसंबर लग जाएगी ना, आप मेरी मजबूरी समझिए। तो अब कम कहे तो ज्यादा समझा जाए ना। तो तारीख बदलने से पहले अगर ये जश्न मुकम्मल हो जाए और इतना कि लोग तरस जाएं, छोटी छोटी क्लिप, छोटी छोटी रील सुने और उसके बाद में क्या जश्न हुआ था, तो जबरदस्ती खींचना नहीं। जश्न आयाद शाबानिया का ये दरवाजा है। हाँ हाँ, एक 10 मिनट का एक जश्न हमने किया है शम्स साहब के साथ। आइए मैं गुजारिश करूंगा जनाब वसी अब्बास साहब को, मगर 4 मिसरे हम के मैं पेश करता हूं। सबूत हक, ये 2 टके का मौलवी ठका ठक कसरत के साथ सजदा करके ये चाहता है कि मैं साबित करूं कि अल्लाह मेरे बगैर कुछ नहीं। अगर मैं ना नमाज पढ़ूं तो अल्लाह अल्लाह नहीं, मैं ना वजू बनाऊं तो अल्लाह अल्लाह नहीं रहेगा। लेकिन सबूत हक, तेरा सजदा तेरी जबी तो नहीं, फकत ये वहम है तेरा, तेरा यकीन तो नहीं। मैं फातिमा हूं, मशीयत पे वो दलील हूं मैं। अगर मैं कह दूं खुदा है तो है, नहीं तो नहीं। हैदर 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 है। इसी आवाज के साथ में वसी अब्बास। हज़रात अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले आपको इश्क़ खातिम जन्नत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये ख़ता मुलाहिदा कीजिएगा कि सवाब उनको मिले क्या तवाफ़े काबा का, सवाब उनको मिले क्या तवाफ़े काबा का, जो करबला की ज़ियारत से दूर रहते हैं। सवाब उनको मिले क्या तवाफ़े काबा का, जो करबला की ज़ियारत से दूर रहते हैं। अली के साथ न शामिल किसी का नाम करो, ये पंजतन है नजासत से दूर रहते हैं। अली के साथ न शामिल किसी का नाम करो, ये पंजतन है नजासत से दूर रहते हैं। ये पंजतन है नजासत से दूर रहते हैं। अब भी नजरों में है जलता हुआ दर ज़हरा का,
अब भी नजरों में है जलता हुआ दर जहरा का, ये अलग बात कई सदियों की ये दूरी है। अब भी नजरों में है जलता हुआ दर जहरा का, ये अलग बात कई सदियों की ये दूरी है। तो छोड़ सकता नहीं हरगिज मैं तबर्रा करना, क्या करूं इसमें मेरे खून की मजबूरी है। छोड़ सकता नहीं हरगिज मैं तबर्रा करना, क्या करूं इसमें मेरे खून की मजबूरी है। छोड़ सकता नहीं हरगिज मैं तबर्रा करना, छोड़ सकता नहीं हरगिज मैं तबर्रा करना, क्या करूं इसमें मेरे खून की मजबूरी है। क्या करूं इसमें मेरे खून की मजबूरी है। साकिए करबो बला गैरत इलियास के पाँव, साकिए करबो बला गैरत इलियास के पाँव, साकिए करबो बला गैरत इलियास के पाँव, जिसने दरिया को हराया है उसी प्यास के पाँव, जिसने दरिया को हराया है उसी प्यास के पाँव। तो सर झुकाकर जो लिया हमने अलम का बोसा, यूं लगा चूम लिए हजरत अब्बास के पाँव। सर झुकाकर जो लिया, सर झुकाकर जो लिया हमने अलम का बोसा, यूं लगा चूम लिए हजरत अब्बास के। सर झुकाकर जो लिया हमने अलम का बोसा, यूं लगा चूम लिए हजरत अब्बास के पाँव। जुनू का उसके नतीजा जरूर निकलेगा, जुनू का उसके नतीजा जरूर निकलेगा, आतश की धूप को लेकर वो दूर निकलेगा। जुनू का उसके नतीजा जरूर निकलेगा, आतश की धूप को लेकर वो दूर निकलेगा। अगर निचोड़ दे सूरज को हजरत अब्बास, हमें यकीन है पानी जरूर निकलेगा। अगर निचोड़ दे सूरज को हजरत अब्बास, हमें यकीन है पानी जरूर निकलेगा, हमें यकीन है पानी जरूर निकलेगा। अब्बास के अलम को उठाए हुए हैं हम, अब्बास के अलम को उठाए हुए हैं हम, सोया हुआ नसीब जगाए हुए हैं हम। अब्बास के अलम को उठाए हुए हैं हम, सोया हुआ नसीब जगाए हुए हैं हम। तो सजदों के दाग मातम सरवर के साथ हैं, काबे से करबला को मिलाए हुए हैं हम। सजदों के दाग मातम सरवर के साथ हैं, काबे से करबला को मिलाए हुए हैं हम। है सर सीना की नोक पर शब्बीर का मगर, होठों से आयतों की रवानी नहीं गई। है सर सीना की नोक पर शब्बीर का मगर, होठों से आयतों की रवानी नहीं गई। तारीख चुपा देख के चेहरा हुसैन का, मानी नहीं जो बात वो मानी नहीं गई, मानी नहीं जो बात वो मानी नहीं गई। अकबर जवान होते हैं जैनब की गोद में, अकबर जवान होते हैं जैनब की गोद में, इस घर से मुस्तफा की निशानी नहीं गई। इस घर से मुस्तफा की निशानी नहीं गई। तो दीवार जोड़ जोड़ के वो थक गया मगर, काबे से एक लकीर पुरानी नहीं गई। दीवार जोड़ जोड़ के वो थक गया मगर, काबे से एक लकीर पुरानी नहीं गई। तो लड़ते हुए हबीब को देखा तो बोले सब, लड़ते हुए हबीब को देखा तो बोले सब, वो दोस्ती है जिसकी जवानी नहीं गई, वो दोस्ती है जिसकी जवानी नहीं। वाह 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 वाह। बस इसी तरीके से इंशाल्लाह ये जश्न बहुत कामयाब होगा। पहले एक मतलब सुनिए शहजादी की मदा में, जो शरीयत में है वह बहुत कम है। मुझे इतना भी कहने का मौका नहीं है कि मैं कहूँ तवज्जो फरमाए, और इतना भी मौका नहीं कि मैं कहूँ बहुत अच्छा पढ़ा। बस जल्दी से जो पढ़ना है वो पढ़ दूं। जो शरीयत में है, जो दीन में है, जो शरीयत में है, जो दीन में है, सब का सब सैयदा के सीन में है। अरे मेरा मजमा, जो शरीयत में है, जो दीन में है, सब का सब सैयदा के सीन में है। शहजादी के बाद में अब जैसे वसी अब्बास ने पढ़ दिया एक नाम, और उसके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कि वो अमहट की शनाख्त है, अमहट का चेहरा है। यूं तो कोई मदह अहले बैत का पहलू और कोई फजाइल का ऐसा पहलू नहीं है जिसमें नुमाइंदगी अमहट की ना हो, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने सियासत और समाज, इल्म और अदब, शायरी और जाकरी सब में अपनी शनाख्त कायम की है, और उसके साथ इवेंट मैनेजमेंट में जो उसकी सलाहियतें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जो उसकी सलाहियतें हैं, कसम खुदा की 5000 मोमिनीन को जमा करना आसान है, मगर 5 शायरों को एक गाड़ी में बिठा के लाना किसी मुजज़े से कम नहीं है। टाइम पे जमा कर देना, टाइम पे उनको इकट्ठा करना, एक पॉइंट पे। कसम खुदा की शायरों में हम लोगों में मोहब्बत बहुत है, उसको अदरवाइज ना ले जाइएगा, मगर ये कह दीजिए कि साहब रिजॉर्ट के गेट पे आप 5:05 पे मिलिएगा, तो 15:15 पे तो मिल सकते हैं, 5:05 पे कोई नहीं। लेकिन ये हमारे अली हैदर साहब हैं जो लेके आए हैं।
मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मदा का भी और मौका है, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है कि कुछ चीज़ें रिकॉर्ड में आ जाएं जो हम मुझे थोड़ा सा जब अमठ आता हूं तो अपना बचपन याद आ जाता है। अब्बास इरशाद साहब यहाँ अशरा पढ़ा करते थे और हम लोग बचपन में जो हमारे हाफिजे का हिस्सा बने वो उनके अशार, वो अमठ में एक बार फिर कि यहीं से हमने सीखा था। कितने शेर हैं जो हम पूरी दुनिया में पढ़ते हैं, मगर इसी अब्बास डे में हमने सुने थे जो रज़मी साहब किया करते थे यहाँ पे, यहीं पे जो खावर साहब किया करते हैं, यहाँ के बाद में वो शेर मौलाना खावर साहब किबला, मैं इस वजह से यहीं पे सुने हुए मिसरे पेश कर रहा हूँ। शाफ़े मैशर मेरा भाई साक़ी कौसर मैं, ऐसे सुन लीजिए कि फिर ये पूरी दुनिया में जाएगी। शाफ़े मैशर मेरा भाई साक़ी कौसर मैं, सबसे आला मेरी ज़ौजा उसका हमसर मैं, मुझको मिटाना है तो मिटाओ पहले सूरह हमद में पोशीदा हूँ नुक्ता बनकर मैं, एक फ़कत खुरा ही नहीं है मेरा मिदहत खां, अरे तौरात तो इंजील में भी हूँ वरक वरक पर मैं, तौरात तो इंजील में भी हूँ वरक वरक पर मैं, अरे मेरे लक़ब का गासिब काज़िब इब्ने काज़िब है, फातिह खैबर मेरा लक़ब सिद्दीक़ अकबर मैं, अरे दोष नबी पर मेरी बुलंदी का ये आलम था, अर्श का तारा छू सकता था हाथ बढ़ाकर मैं, अरे छू सकता था अर्श का तारा फिर भी क्यों छूता, उसको जब बुलवा लेता हूँ अपने दर पर मैं। हैदर है जिस सलीके से ये हम लोगों को लेके आए हैं उसी मोहब्बत के साथ में मैं उनको दावत दे रहा हूँ, उसी मोहब्बत के साथ हम लोग इनके साथ जाएंगे। नारे हैदर। बहुत ही इख्तिसार से, बहुत ज़्यादा देर आपके दरमियान हायल नहीं रहना चाहता, आप मेहमान शोरा को सुनने के लिए आए हैं, लिहाजा मैं 5 से 6 ज्यादा देर न करने पे अगर एक जुमला कहे तो यूं ही आप लोग तारीफ किया करिए। सुभान अल्लाह। मुलाजा फरमाइए वो मोहम्मद का वफादार नहीं हो सकता, वो मोहम्मद का वफादार नहीं हो सकता, जो तबर्रे का तरफदार नहीं, वो मोहम्मद का वफादार नहीं हो सकता, जो तबर्रे का तरफदार नहीं हो सकता। ये शेर बतौर खास मुलाजा फरमाएंगे। वो मोहम्मद का वफादार नहीं हो सकता, जो तबर्रे का तरफदार नहीं हो सकता, कि जिसको भी बिनते पैगंबर से मोहब्बत होगी, कभी दुश्मन का रवादार नहीं हो सकता, जिसको भी बिनते पैगंबर से मोहब्बत होगी, कभी दुश्मन का रवादार नहीं हो सकता, कभी दुश्मन का रवादार नहीं हो सकता, कि गासिबे बागे फिदक पे न करे जो लानत। शेर बतौर खास, गासिबे बागे फिदक पे न करे जो लानत, गासिबे बागे फिदक पे न करे जो लानत, गासिबे बागे फिदक पे न करे जो लानत, वो कभी खुल्द का हकदार नहीं हो सकता। अरे सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बेशक क्या उम्दा पड़ा भाई, वाह। वो कभी खुल्द का हकदार नहीं हो सकता। शेर बतौर नहीं भाई, कि दार पर मिदहत मौला कोई आसान नहीं, वाह वाह, दार पर मिदहत मौला कोई आसान नहीं, हर कोई मीसा में तम्मार नहीं हो सकता,
हर कोई मीस में तमार नहीं हो सकता। ये भी शेर बतौर खास कि जिस्म बीमार भी हो जाए जो मौलाई का। ये शेर खुसूसी तौर पे मुलाजा फरमाइए। जिस्म बीमार भी हो जाए जो मौलाई का, कि जिस्म बीमार भी हो जाए जो मौलाई का, पर अकीदा कभी बीमार। वाह 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 वाह। जिस्म बीमार भी हो जाए जो मौलाई का, जिस्म बीमार भी हो जाए जो मौलाई का, पर अकीदा कभी बीमार नहीं हो सकता, पर अकीदा कभी बीमार नहीं हो सकता। सिर्फ 2 शेर की ज़हमत फरमा ले। पर अकीदा कभी बीमार नहीं हो सकता, कि देख के खैबर में अलम बोले नबी हैदर से। देख के खैबर में अलम बोले नबी हैदर से, कि देख के खैबर में अलम बोले नबी हैदर से, भागने वाला अलमदार नहीं हो सकता, भागने वाला अलमदार नहीं हो सकता, भागने वाला अलमदार नहीं हो सकता। बस इस सिलसिले का आखिरी शेर। भागने वाला अलमदार नहीं हो सकता। मुलाहिजा फरमाएंगे जनाब ज़ैनब के हवाले से आखिरी शेर कि लहजे हजरत ज़ैनब का ये एजाज है बस, लहजे हजरत ज़ैनब का ये एजाज है बस, कि लहजे हजरत ज़ैनब का ये एजाज है बस, वरना खुतबा कभी तलवार नहीं हो सकता। लहजे हजरत ज़ैनब का ये एजाज है बस, वरना खुतबा कभी तलवार नहीं हो सकता, वरना खुतबा कभी तलवार नहीं हो सकता। शुक्रिया। ऐसे थोड़ा सा तमीदी 2-4 शेर वाला मामला है। देखिए ये 9 शोराए कराम जो हैं वो इस जश्न में मदऊ हैं, यानी महल रिजॉर्ट्स में महफिल मिदहत का 9 महला तामीर होने जा रहा है, जिसका खूबसूरत और मजबूत संग बुनियाद जनाब वसी अब्बास साहब ने रखा, दीवारें जनाब अली हैदर साहब ने कायम कर दी। और अब हम ये चाहते हैं कि पहली छत पड़ने से पहले, अब चूंकि कंस्ट्रक्शन का माहौल तब्दील हो गया है, अब कॉलम और बीम भी चाहिए, तो 2-1 कॉलम बीम और रह गए हैं, वो मैं चाहता हूँ मुकम्मल हो जाएं, तब फिर ये हमारा महल तामीर हो जाए और फिर इस महल के वसीले से जन्नत में आप सबको नूर का महल मिले, शहजादी की मदह के वजह से सदक़े में। अब मैं यहाँ से 4 मिसरों के साथ, चूंकि हमारी तहजीब ये भी है कि मकामी शोरा को मुख्तसरन मगर 1-2 को, चूंकि मकाम उन्हीं का होता है, 5 शेर के लिए तशरीफ ला रहा है एक मकामी शायर, मगर 4 मिसरों से मैं उनका इस्तेमाल कर लूंगा। कल जनाब शरर नकवी साहब के साथ हम लोग सिरसी सादात में मौजूद थे। ज़ैगम सिरसवी ने एक भला के 4 मिसरे पढ़े। निज़ामत का फरीजा होता है कि ताज़ा शेरों को ग्राफ एजेंसी के जरिए से पूरी दुनिया में फौरन वायरल कर दे, ताकि मिनटों का काम सेकंडों में हो जाए। हम लोगों को शोहरत पाने में 10 साल लगे थे, अब शोहरत पाने में 10 सेकंड लगते हैं। एक उंगली दबाइए और वायरल है आपके कलाम। मैं मिसरे पेश करता हूँ। पैगंबरी पे भी हुज्जत है फातिमा ज़हरा, आज जश्न उसका है जो जात में बतूल है, बात में रसूल है।
पैगंबरी पे भी हुज्जत हैं फातिमा ज़हरा। ये बात हम नहीं कहते, रसूल कहते हैं। ये बात हम नहीं कहते, रसूल कहते हैं। जलन है किस लिए हिंदा के बाल बच्चों को, हसन हुसैन की मां को बतूल कहते हैं। जलन है किस लिए हिंदा के बाल बच्चों को, जलन है किस लिए हिंदा के बाल बच्चों को, हसन हुसैन की मां को बतूल कहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा शायर अहले बैत जनाब अंसार सुल्तान पूरी। कहां है अंसार भाई? अरे 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 आ जाए अंसार भाई, तब फिर आएगा। आ गए। अरे जब तक आप एक सलवात भेजे वो आ जाएंगे। अरे एक सलवात में आ जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। हाँ आ जाए अंसार आने वाले अंसार भाई आइए 5 नारे हैदरी। सामीन हजरात सलामुन अलैकुम। पहले दो शेर समाज जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से समाज फरमाए। ये जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब के पहले बावज़ू होकर इज़्न किबरिया लीजिए, पहले बावज़ू होकर इज़्न किबरिया लीजिए, फिर ज़बान मिदहत से नाम फातिमा लीजिए, फिर ज़बान मिदहत से नाम फातिमा लीजिए, फिर ज़बान मिदहत से। अंसार भाई जिंदाबाद। बावज़ू होकर इज़्न किबरिया लीजिए, फिर ज़बान मिदहत से नाम फातिमा लीजिए, फिर ज़बान मिदहत से नाम फातिमा लीजिए, फिर ज़बान मिदहत से नाम फातिमा लीजिए। अरे जिंदाबाद। नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अरे जिंदाबाद क्या मतलब है? पहले बावज़ू होकर इज़्न किबरिया लीजिए, फिर ज़बान मिदहत से नाम फातिमा लीजिए, आप साफ़े महशर मलका है जन्नत की, आप साफ़े महशर मलका है जन्नत की, इनसे करता है दिल से राबता बना लीजिए, वाह वाह। इनसे करता है। एक नारे सलवात। सैयदादी के हवाले से 4 बंद समात फरमाए कि बेशक शरीके कार रसालत
फातिमा बेशक शरीके कार रसालत है फातिमा कल्बे रसूल पाक की राहत है फातिमा उठे अगर रसूल भी ताज़ीम के लिए फिर तो कहोगे साहिबे अज़मत है फातिमा फिर तो कहोगे साहिबे अज़मत है फातिमा जिसने लहू से सींच के दी को बचा लिया वाहिद कायनात की औरत है फातिमा वाहिद कायनात की औरत है फातिमा ज़ेरे के साह है इस्मते दोनों जहान की ये बात हक है मरकज़े इस्मत है फातिमा उम्मत यजीद हो गई होती यजीद की वजह है बकाए दीन शरीयत है फातिमा कीजिए कबूल हुर पाए एहसान कीजिए असरार मेरे अजरे रिसालत है फातिमा असरार में वाह वाह एक एक आपका हदिया हदिया अंसार भाई सलामत रहिए गले मिलिए एक बार आप मेरे भी बड़े भाई हैं अंसार भाई के तो बड़े भाई हैं ही हैं अच्छा अहले सुल्तानपुर हाँ अशफाक भाई सेहरा का हुआ सेहरा सेहरा आपका हाँ हाँ सब लोगों ने अशफाक भाई को देखते ही सेहरा हटा दिया खैर अब थोड़ा जश्न है इस वजह से मुझे जनाब अंसार सुल्तानपुरी साहब के आज पढ़ने पे हैरत नहीं है मुझे अब तक न पढ़ने पे हैरत है कि वो महफिलों में अब तक क्यों नहीं पढ़े यार ये बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं कोई रास्ता निकाल दीजिए भाई इनको बैठा दीजिए कहीं भाई हाँ ठीक हाँ रख कुछ कर हाँ तो खैर वकार भाई इनकी खामोशी पे इनके बोलने पे मुझे हैरत नहीं है जो आज 55 साल से 50 साल से वो खामोश हैं इस पे मुझे हैरत है कि ये नाम तो बैनुल अक़वामी शोहरत का होना चाहिए था और आपको उनकी उंगली पकड़ के चलना चाहिए मैं एक मतलब आपकी नजर करता हूं अंसार भाई उसी की खामोशी को जिंदगी का राज कहते हैं मुखातिब हो जो दुनिया से उसे आवाज कहते हैं क्या प्यारी आवाज क्या उम्दा और क्या आपने पढ़ा आइए आपकी जमीन में 4 मिसरों के साथ एक मतलब और एक शेर के साथ मैं जनाब सुहैल बस्तवी साहब को एक कते से ज्यादा मैं निजामत में नहीं पढ़ूंगा ताकि एक कलाम से ज्यादा शायर भी ना पढ़े देखिए मैं अर्ज कर रहा हूं यहां से कि कुफवे अली हैं बिनते पैगंबर हैं फातिमा कुफवे अली हैं बिनते पैगंबर हैं फातिमा 11 इमाम बेटे हैं मादर हैं फातिमा कुफवे अली हैं बिनते पैगंबर हैं फातिमा
11 इमाम बेटे हैं, मादर है फातिमा। अरे जो चाक कर रहा था हिबा नामे फिदक, वो भी तो जानता था कि हक पर है फातिमा। जो चाक कर रहा था हिबा नामे फिदक, वो भी तो जानता था कि हक पर है फातिमा। मैं गुजारिश करूंगा शायर अहले बैत, आपके दिल की आवाज, आपकी धड़कन, आपका इंतजार, आपकी मोहब्बत, आपका खुलूस, आपका इश्क, आपका प्यार, आपका महबूब और आपकी मानूस आवाज जनाबे सुहेल बस्तवी से वो तशरीफ ले आए और मदहे शहजादी जन्नत, मदहे आले जन्नत, आले शहजादी जन्नत फरमाए। बावाज़ बुलंद नारे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफिल सलामुन अलैकुम से बाबरकत और पुरमसरत जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और यहीं से इजाज़त चाहते हुए एक मतलब और सिर्फ 5 शेर, एक मिसरा भी एक दो रोज़ कबल हुआ था कि है आज भी फिदक की ज़मींदार फातिमा। मतलब चंद अशआर सुन ले, सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला क्यों डरे किसी से आज़ादार फातिमा। अरे सुभान अल्लाह सुहेल, वाह वाह। क्यों कर डरे किसी से आज़ादार फातिमा। जो मानते हो आपको सरकार फातिमा, क्यों कर डरे किसी से आज़ादार फातिमा। फर्शे अज़ा से करती है वो प्यार फातिमा। फर्शे अज़ा से करती है वो प्यार फातिमा। आई है मेरे घर में कई बार फातिमा। अरे जिंदाबाद सुहेल, वाह वाह। मेरे घर कई बार आई है, मेरे घर में कई बार फातिमा। मरियम के साथ बैठी है महफिल में हाजरा। मरियम के साथ बैठी है महफिल में हाजरा। इस शौक में के देख ले एक बार फातिमा। सुहेल जिंदाबाद, फिर पढ़ो भाई शेर। वाह 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 वाह। मरियम के साथ बैठी है महफिल में हाजरा। अरे इस शौक में के देख ले एक बार। क्या कैफियत है, क्या ज़बान है, फातिमा। क्या ज़बान है भाई, वाह वाह। क्या सना है, क्या मदा है, वाह 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 वाह। मरियम के साथ यार अच्छा है, वाह वाह, बहुत अच्छा है। बस 3-4 शेर।
बेशुमार बेशुमार सलाम सलामत हैं बेशुमार। क्यों कर डरे किसी से अज़ादार फातिमा मरियम के साथ बैठी है महफिल में हाजरा इस शौक में के देख ले एक बार फातिमा फिर पढ़ो भाई। मरियम के साथ बैठी है महफिल में हाजरा इस शौक में के देख ले एक बार फातिमा महशर में भाई आप नजर कर रहा हूं महशर में फंस गए हैं फिदक तेरे गासिबी महशर में फंस गए हैं फिदक तेरे गासिबी महशर में जिंदाबाद फंस गए हैं फिदक तेरे गासिबीन इस पार है खदीजा तो उस पार फातिमा इस पार है खदीजा तो उस पार फातिमा इस पार महशर में फंस गए हैं फिदक तेरे गासिबीन इस पार है खदीजा तो उस पार फातिमा। देखें अपना पसंदीदा शेर हाजिर कर रहा हूं देख लें। फिजा के सर पा फेर के नूरानी अपने हाथ हाँ फिजा के सर पा फेर के नूरानी अपने हाथ चांदी को कर दे और चमकदार फातिमा चांदी को कर दे बस 3 शेर और है चमकदार फातिमा फिजा के सर पर फेर के नूरानी अपने हाथ चांदी को कर दे और चमकदार फातिमा। अब्बास तुझ पे और भी जचता है ये लक़ब अब्बास तुझ पर भी जचता है ये लक़ब अरे कह कर गई है तुझको अलमदार फातिमा कह कर गई है तुझको अलमदार फातिमा। अब्बास तुझ पर भी या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन। क्या जश्न हो रहा है। अब्बास तुझ पर और भी जचता है ये लक़ब अरे कह कर
गई है तुझको अलमदार फातिमा। बच्चे को इसलिए भी तबरुक खिलाते हैं, बच्चे को इसलिए भी तबरुक खिलाते हैं। वाह वाह। बच्चे को इसलिए भी तबरुक खिलाते हैं। अरे बन जाए आपका वो नमक खार फातिमा, बन जाए आपका वो नमक खार फातिमा। ज़ेरे किसाब सभी का तारुफ इन्हीं से है, ज़ेरे किसाब सभी का तारुफ इन्हीं से है। यानी है सारे शेरों की सरदार फातिमा, यानी है सारे शेरों की सरदार फातिमा। आखिरी शेर बचपन से एक वाकया सुनते आए हैं, देख ले। दुल्हन जिलातिया न पढ़ कर अगर नमाज, दुल्हन जिलातिया न पढ़कर अगर नमाज, न पढ़कर अगर नमाज, रब रब कहने लगता आपको संसार फातिमा। दुश्मन पर इनके भेजना लानत सदा सो है, महशर में होगी तेरी तरफदार फातिमा। क्यों कर डरे किसी से अज़ादार फातिमा। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। बस जिंदाबाद। यही तरीका रहा इंशाअल्लाह शानदार। एक बंदा हिलेगा नहीं, आप ये समझ लीजिए। एक कते पे निजामत और एक कलाम पे शायर। इंशाअल्लाह बहुत कामयाब जश्न होगा। आप देखिए महशर में होंगी तेरी तरफदार फातिमा। सुहेल साहब आपने एक बहुत प्यारा शेर, सारे शेर बहुत अच्छे, मगर अगर देखिए इतना तो होना चाहिए कि कोई शेर अगर एक में ऐसा हो जाए तो तबसरे का भी हक बनता है। महशर में फंस गए हैं फिदक तेरे कासिबीन, इस पार हैं खदीजा तो उस पार हैं, उस पार फातिमा। कमर हैदर खान साहब, आज जीपीएस का जमाना है। दुबई में आपकी तजारत और आपकी कंपनी आलम भाई वहां से तशरीफ ले आए, हमारा सलाम। आप वाराणसी से अगर आप सुल्तानपुर आते हैं या लखनऊ से आते हैं तो आज का तरीका गाड़ी में स्टीयरिंग पे हाथ बाद में जाएगा, ड्राइवर का पहले जीपीएस लगाएगा। कहां? सुल्तानपुर में मौला अब्बास की करबला पे जाना है, वहां सीधे गाड़ी पहुंच जाएगी। यूं जीपीएस लगाया। बाबे कदीर पे पहुंचना है, जीपीएस लगाया पहुंच जाएंगे। महल रिजॉर्ट्स पे जीपीएस लगाया आप पहुंच जाएंगे। उसी तरीके से मैं आपको 3 जीपीएस देता हूं। महशर के बाद के बहुत आसान, पहले ही से ले लीजिए। निजामत आपको आज माला माल मिल रही है। आखिरत का सामान आपको बता रहा हूं, आपको पूरा पता बता दे रहा हूं कि आसमान पे सिदरतुल मुंतहा कहां पे है, उसके किस तरफ जो है महशर का मैदान होगा और उसके किस तरफ जन्नत पे जाना होगा। बिल्कुल आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूं। जीपीएस लीजिए, आप आसमान पे चले जाइए। आसमान से एक मोती का दाना सिदरतुल मुंतहा से गुजारिए। अर्शे मुअल्ला से नीचे को अगर आप मोती का दाना गिराएंगे तो सीधे खाने काबा के ठीक बीचों बीच में गिरेगा। सिदरा जमीन पे उतर आए तो काबा, काबा आसमान पे चला जाए तो सिदरतुल मुंतहा। एक मोती का दाना लीजिए, जीपीएस बनाइए और ठीक जन्नत में दरवाजे पे चले जाइए। बाबे जन्नत से एक मोती अगर आप गिराएंगे तो हजरत अब्बास का हरम, जन्नत पूरी करबला, करबला ऊपर चली जाए तो जन्नत, जन्नत जमीन पे उतर आए तो करबला। इसी तरीके से मैदान महशर का पूरा एरिया आपको बता दे रहा हूं इन दोनों के बीच में
जैसे महल और वो मौला अब्बास की दरगाह और वो बाबे गदीर, उसी तरीके से इन दोनों के बीच में थोड़ा सा पहले जरा दाईं तरफ को जो रास्ता जाएगा वो सीधे मैदान महशर होगा। मैदान महशर से अगर आप एक तिनका जमीन पे गिराएं तो वो अरफात का मैदान, अरफात का मैदान जमीन पे उठ जाए तो मैदान महशर जमीन पे उतर आए तो अरफात का मैदान। और अरफात के इकलौते ओनर का नाम है खुवैलद, खुवैलद की बेटी का नाम है खदीजतुल कुबरा। अरे कहां बैठे हैं आप? नारे हैदरी। अब पूरे मैदान महशर की दो ही मालकन होंगी, एक तरफ माँ बन के खदीजा बैठी होंगी, एक तरफ खदीजा की शहजादी हजरत फातिमा होंगी। है कोई जो इनकी मर्जी के बगैर, इनकी इजाजत के बगैर, इनकी रजा के बगैर मैदान महशर से एक कदम आगे बढ़ जाए? जो कातिल है वो जहन्नम में जाए, जो इनका चाहने वाला है वो जन्नत में जाए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। 4 मिसरों के साथ उस शायर को बुला रहा हूं जिसके 4 मिसरे आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं। कहां पे जाएंगे ये गासिबीन बाग़ फिदक? कहां पे जाएंगे ये गासिबीन बाग़ फिदक? न पाएंगे कहीं रास्ता तेरे ज़हूर के बाद, इमाम ज़माना के हवाले से, न पाएंगे कहीं रास्ता तेरे ज़हूर के बाद। वो जिसने फातिमा ज़हरा का दर जलाया था, जलाया जाएगा जिंदा तेरे ज़हूर के बाद। इन मिसरों के खालिक शायर अहले बैत, ज़ाकिर अहले बैत अल्लामा सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शरर नक़वी संभली तशरीफ ला रहे हैं। नारे हैदरी। हज़रात, सबसे पहले आप तमाम हज़रात को इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और 4 मिसरों से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। बिल्कुल नए मिसरे हैं और अभी सिर्फ कल सिरसी में पढ़े डॉक्टर साहब के साथ हाजिर करता हूँ। गैब से जब आएंगे मौला तो आएगी सदा। तवज्जो, अभी अभी अय्याम अज़ाए फातिमिया 17 दिन हुए हैं, 18 दिन हुए, मुसलसल मजलिसें आपने की हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस पहलू का भी आपने गौर किया है कि जिस पहलू की तरफ मैं मुतवज्जह कराना चाहता हूँ आपको, और अगर मेरी बात पहुँच गई तो इंशाअल्लाह कोई मोमिन खामोश नहीं बैठेगा। गैब से जब आएंगे मौला तो आएगी सदा, जिनका जैसा जुर्म है वैसी सजाएं पाएंगे। सुनिएगा, जिनका जैसा जुर्म है चौथा वैसी मिसरा बड़ा सजाएं खुसूसी है। गैब से जब आएंगे मौला तो आएगी सदा, जिनका जैसा जुर्म है वैसी सजाएं पाएंगे। दिल ये कहता है मेरा तस्बीह है ज़हरा की कसम, कातिले ज़हरा के पहले हाथ काटे जाएंगे। बेशक दिल ये कहता है मेरा तस्बीह है ज़हरा की कसम, मौला आपको सलामत रखे। दिल ये कहता है मेरा तस्बीह ज़हरा की कसम, कातिले ज़हरा के पहले हाथ काटे जाएंगे, कातिले ज़हरा के पहले हाथ काटे जाएंगे। जो आपकी डेहड़ी के वफादार है ज़हरा, जो आपकी डेहड़ी के वफादार है ज़हरा, वो लोग हर एक हाल में खुददार है ज़हरा। ये चाहें तो रिजवान को भी दर्जी बना दें, जर्रे को फलक करने पर मुख्तार है ज़हरा। ये चाहे तो रिजवान को भी दर्जी बना दें, जर्रे को फलक करने पर मुख्तार है ज़हरा। फाके तो किए, हाथ न फैलाए कहीं पर, फिजा भी बहुत आपकी खुददार है ज़हरा। ना 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 ना, मैं शायरी सुनाने जा रहा हूँ। फिजा भी बहुत आपकी खुददार है ज़हरा। सब जिसका तसद्दुक हो फदक उसके लिए क्या, सुभान अल्लाह। सब जिसका तसद्दुक हो फदक उसके लिए क्या। फिर सोचो कि क्यों कर सरे दरबार है ज़हरा, दरअसल उलटना थी सितमगर की नकाबे, और ये भी बताना था कि हकदार है ज़हरा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद शरर साहब, वाह वाह। दरअसल
लटना थी सितम करके। अगर मेराज पना ले गया तो गुफ्तगू का मजा ही नहीं है। दर असलू लटना थी सितम कर की नकाबें। और ये भी बताना था कि हकदार है जहरा, मिट ही नहीं सकती कभी दोनों की निशानी। क्या बात है, मिट ही नहीं सकती कभी दोनों की निशानी। हालात जमाना से खबरदार है जहरा। फिर कताबन सुना रहा हूं आपको, मिट ही नहीं सकती कभी दोनों की निशानी। हालात जमाना से खबरदार है जहरा। शब्बीर के ताबूत का हाफिज है आलमदार, अब्बास के परचम की निगहदार है जहरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हैदरी शब्बीर के ताबूत, अली मौला, 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 अली अली मौला, अली मौला, अली मौला। मिट ही नहीं सकती कभी दोनों की निशानी। हालात जमाना से खबरदार है जहरा। शब्बीर के ताबूत का हाफिज है आलमदार, अब्बास के परचम की निगहदार है जहरा। अब शेर पढ़ता हूँ आहिस्ता से, ये देखता हूँ कि आप जुड़े मुझसे के नहीं जुड़े। शब्बीर के ताबूत का हाफिज है आलमदार, अब्बास के परचम की निगहदार है जहरा। अब्बास के परचम की निगहदार है जहरा। हल करता है जो सारे जमाने के मसाइल, उस जैसे मसीहा की मददगार है जहरा। क्या बात है, हल करता है जो सारे जमाने के, हल करता है जो सारे जमाने के मसाइल, उस जैसे मसीहा की, उस जैसे मसीहा की मददगार है जहरा। शब्बीर का मातम, शब्बीर का मातम न रुका था न रुकेगा। हम उस सबसे बड़ी शय की आजादार है। शब्बीर का मातम न रुका था न रुकेगा। शब्बीर का मातम न रुका था न रुकेगा। हम सबसे बड़ी, मिलके मेरे साथ बोलिए, हम सबसे बड़ी शह की आजादार हैं, आजादार हैं। मैं इसलिए ये रदीफ आपको याद करा देना चाहता हूं कि अमट एक ऐसी सरजमीन है कि जहां लॉकडाउन में भी मजलिस नहीं रुकी है। आप आज़ादारी के हवाले से पहचाने जाते हैं, सुल्तानपुर के नौहे, सुल्तानपुर की आज़ादारी। अब मैं शेर पढ़ता हूँ, शेर में सच्चाई हो तो मुझे ये लगना चाहिए कि मैं सुल्तानपुर में शेर पढ़ूं। शेर हाजिर करता हूँ। शब्बीर का मातम न रुका था न रुकेगा। हम सबसे बड़ी शह की आजादार है जहरा। हम सबसे बड़ी शह की आजादार है जहरा। शब्बीर, शब्बीर तेरा गम हमें किस औज बलाया, बुलंदी बलाया। शब्बीर तेरा गम हमें किस औज बलाया। हम जैसों से अश्कों की तलबगार है जहरा। हम जैसों से, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। शब्बीर तेरा, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको आबाद रखे। शब्बीर तेरा गम हमें किस औज पर लाया। हम जैसों से, हम जैसों से, हम जैसों से, हम जैसों से अश्कों की तलबगार है जहरा। हम जैसों से, हम जैसों से अश्कों की तलबगार है जहरा। जब पूछेगा अल्लाह
तेरा है कोई हामी? जब पूछेगा अल्लाह तेरा है कोई हामी, कह दूंगा शरर मेरी मददगार है ज़हरा। मौला आपको सलामत रखे। जिंदाबाद। जब पूछेगा अल्लाह तेरा है कोई हामी, जब पूछेगा अल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, जब पूछेगा अल्लाह तेरा है कोई हामी, कह दूंगा शरर मेरी मददगार है ज़हरा। मैं बहुत जल्दी चूंकि सारे शोरा को पढ़ना है, बहुत इख्तिसार के साथ चाहता हूँ शहजादी के हवाले से कुछ सुनाऊँ आपको। मैं हूँ ज़हरा, मुझे कहते हैं नबी की दुख्तर, मेरे घर चक्की चलाते हैं फरिश्ते आकर, ये भी मखसूस है एहसान खुदा का मुझ पर। मैं हूँ सरदारे जवानाने जिना की मादर, खुल्द के पाक नज़ारों की जिया पाएगा, जिसको मैं कह दूंगी जन्नत में वही जाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। जिसकी ताज़ीम को उठती है रिसालत मैं हूँ, जिसकी कुरान में मौजूद है मिदत मैं हूँ, जिसके अफ़आल पा जाती है आयत मैं हूँ। अरे कौन है कुल के मददगार की हिम्मत मैं हूँ। अपनी बेमिसलू शजात की सनद मांगते हैं और मुझसे खुद हैदर कर्रार मदद मांगते हैं। बहुत शुक्रिया। अपनी बेमिसल शजात की मैं बहुत जल्दी पढ़ूंगा क्योंकि आपकी समातों पर मुझे यकीन है। मिसरे नहीं दोहराना, मिसरे दोहराना नहीं है, बहुत तेज। अपनी बेमिसल शजात की सनद मांगते हैं, मुझसे खुद हैदर कर्रार मदद मांगते हैं। कलमा पढ़ते हो अगर तुम तो करो ये तस्लीम, हर मुसलमान पर वाजिब है अली की ताज़ीम। रब की मर्जी से अदा करते हैं ये तारे करीम, और रिज़्क़ करते हैं अली सारे जहां को तक़सीम। रिज़्क़ करते हैं अली सारे जहां को तक़सीम। ये मगर सच है हर एक दिन बखुदा करती हूँ, और रोटियां साक़ी कौसर को अता करती हो। रोटियां साक़ी कौसर को अता करती हूँ, साक़ी कौसर को अता करती हूँ। सदरे कौनैन की सिदरा ने बताया है हमें, राज ये मरकज़ ज़ोहरा ने बताया है हमें, दुख्तरे शाह मदीना ने बताया है हमें, आके दरबार में ज़हरा ने बताया है हमें। जिंदगानी के तमाशों की तरह मत जीना, हक़ की बात आए तो लाशों की तरह मत जीना। अरे सुल्तानपुर है भाई, ये क्या बात है, क्या बात है भाई, यकीन दिला दिया आपने। सुल्तानपुर में पढ़ रहा हूँ, जिंदगानी के तमाशों की तरह मत जीना, तो लाशों की तरह मत जीना। सुभान अल्लाह, हक की बात आए तो लाशों की तरह। आप तमाम हजरात के साथ, आप तमाम हजरात के साथ इन उलमा से दुआ चाहता हूँ, क्योंकि ये शहजादी के खुतबे से मैंने अर्ज किया है, ये बंद पूरा शहजादी का खुतबा है। गासी वो होगी सदा अहले विला की लानत, कुल आज़ादारों की और बज़्म वफा की लानत, सिर्फ मोमिन की नहीं अर्ज़ो समा की लानत, तुमने छीना है फदक तुम पर खुदा की लानत। शहजादी ने जो खुतबा पढ़ा है ना, आखिरी फिक्रा है, अब सुनिए और सलामत रखे। तुमने भाई घर वाले ही बोले, तुमने छीना है फदक तुम पर खुदा की लानत, मेरा वादा है ये जिल्लत नहीं छोड़ेगी तुम्हें, और मर भी जाओगे तो लानत नहीं छोड़ेगी। वाह, मेरा दावा है ये जिल्लत नहीं छोड़ेगी तुम्हें, मर भी जाओगे। मौला सलामत रखे। ये जो आपने लानत लगाई है ना,
मेरा वादा है ये जिल्लत नहीं छोड़ेगी तुम्हें। आज जो लोग कहते हैं लानत न कीजिए, तबर्रा न कीजिए, झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, कसम खुदा की शहजादी ने भरे दरबार में कहा था कि कयामत तक तुम्हारा साथ लानत नहीं छोड़ेगी। ये शहजादी के फिक्रे को आप फिक्रे पर अमल करते हैं। मेरा वादा है ये जिल्लत नहीं छोड़ेगी तुम्हें। मर भी जाओगे तो लानत नहीं छोड़ेगी तुम्हें। मेरी अजमत को घटाओगे खबर है मुझको, अपनी औकात बताओगे खबर है मुझको, तुम रिवायात भी लाओगे खबर है मुझको, बेटियां और बनाओगे। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। सुल्तानपुर बेटियां और बनाओगे, बैठ सुनिए, बैठ, बेटियां और बनाओगे खबर है मुझको। अरे घर किसी बेटी का आबाद दिखा सकते नहीं और 3 में 1 की औलाद दिखा सकते। अरे घर किसी बेटी का आबाद दिखा सकते नहीं। मौला को सलामत, मौला को सलामत। घर किसी बेटी का आबाद दिखा सकते नहीं। आखिरी बंद 3 में 1 की औलाद दिखा सकते नहीं। सारी दुनिया का मददगार है मेरा शौहर, सारी दुनिया का मददगार है मेरा शौहर, यानी अल्लाह की तलवार है मेरा शौहर, मर्जी रब का खरीदार है मेरा शौहर, वो अली हैदर कर्रार है मेरा शौहर। ये शायरी नहीं है, हाँ शायरी ना समझिएगा। मैं शहजादी का खुतबा दिखाऊंगा जो शहजादी ने बताया, भरे दरबार में कहा, जंग के माहौल में तुम तो अपने घरों में बैठे रहते थे, मेरा शौहर मैदान में लड़ता था। बैत मुलाहिजा फरमाइए, बैत मुलाहिजा फरमाइए। सारी दुनिया का मददगार है मेरा शौहर, यानी अल्लाह की तलवार है मेरा शौहर, मर्जी रब का खरीदार है मेरा शौहर, वो अली हैदर कर्रार है मेरा शौहर। अरे टूट पाता जो सितमगर से वो धागा ही नहीं, टूट पाता जो सितमगर से वो धागा ही नहीं, और मेरा शौहर किसी मैदान से भागा है। टूट पाता जो सितमगर से वो धागा ही नहीं। हाँ। वाह बेशुमार बेशुमार। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। टूट पाता जो सितमगर से वो धागा ही नहीं, मेरा शौहर किसी मैदान से भागा ही नहीं। हक है ये कौल, हक है ये कौल, हक है ये कौल शरर, हक है ये कौल शरर, हक है ये कौल शरर, हक है अली के पीछे। शहजादी को सुनने आए हैं ना आप? हक है ये कौल शरर, हक है अली के पीछे, हक है अल्लाह का घर, हक है अली के पीछे, हक रसूलों का सफर, हक है अली के पीछे, हक नमाजें हैं मगर, हक नमाजें हैं मगर, हक है अली के पीछे। अरे वो जो रुतबे में जमाने से बड़े हैं हैदर, गौर से देख मेरे पीछे खड़े हैं। सुभान अल्लाह। वो जो रुतबे में जमाने से बड़े हैं हैदर, गौर से देख। बस मैं बिल्कुल इजाजत, 1-2 शेर सुनाने आपको। अली के इल्म से पुर कर लो अपने सीनों को। कमर भाई, अली के इल्म से पुर कर लो अपने सीनों को, कोई भी छीन ना पाएगा इन खजीनों को।
खबर है खूब मोहम्मद के हम नशीनों को, रसूल दोष पर रखते हैं जानशीनों को। सबीले हजरत अब्बास है अदब से पियो, मलाइका ने सजाया है आप गीनों को। अजब कशिश है तेरे गम में बादशाह तलक, जमीन पर बैठे छोड़ा है शाह नशीनों को। नबी बनाए गए हैं हर एक कतरे से, अब बस न छोड़ा खुदा ने तेरे पसीनों को। हुसैन इब्ने अली की मदद का वक्त है ये, हबीबो जौन कसो मरकबों पर जीनों को। क्या बात है, सुभान अल्लाह, यही खामोशी चाहता हूं मैं। हुसैन इब्ने अली की मदद का वक्त है ये, हबीबो जौन कसो मरकबों पर जीनों को। अजब कशिश तेरे गम में बादशाह तलक, ज़मीन पर बैठे हैं छोड़ा है शाह नशीनों को। सबीले हजरत अब्बास है अदब से पियो, सबीले हजरत अब्बास है अदब से पियो। मलाइका ने सजाया है आप तीनों को, कज़ा की शम्त पलट जाएगी ये फौज जफा, अगर हुसैन उलट देंगे आस्तीनों को। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस दो शेर छोड़ दिया मैंने माइक। कज़ा की शम्त पलट जाएगी ये फौज जफा, अगर हुसैन उलट देंगे आस्तीनों को। मैं करबलाओ नजफ जा चुका शरर नकली, मैं देख आया हूं अल्लाह के मदीनों को। आहा आहा सुभान। अब आपको इजाजत है, मैं करबलाओ नजफ जा चुका शरर नकली, मैं देख आया हूं अल्लाह के मदीनों को, मैं देख आया हूं अल्लाह के मदीनों को। इमाम वक्त जब आएंगे आएगी आवाज, इमाम वक्त जब आएंगे आएगी आवाज। कमीन कैसे निकालो सभी कमीनों को, वो सुल्तानपुर कहाँ है? इमाम वक्त जब आएंगे आएगी आवाज। कमीन कैसे निकालो सभी कमीनों को, कमीनों को। दरे बुतूल की चिंगारियां ये कहती हैं, इमाम वक्त जलाएंगे आके तीरों को। अरे जिंदाबाद खुदाए सुखन हजरत मीर बबर अली अनीस की जमीन। और उसमें क्या क्या शेर आपने निकाले बतौर खराज अकीदत। एक मिसरा मैं भी पढ़ता हूँ। सलाम कर ले मज़ारे अनीस को नैयर, ये आसमान बना देते हैं जमीनों को, ये आसमान बना देते हैं जमीनों को। अब हमारे यहाँ 8 बैरूनी शोरा थे, 2 मकामी शोरा थे। सुल्तानपुर का एक भाई जनाब अंसार साहब को हमने पढ़ाया, फिर 4 शोरा। अब चाहते हैं कि एक भाई जनाब वकार सुल्तानपुरी साहब को पढ़ाएं और फिर 4 शोरा। बस इससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं। बस 1 घंटे की महफिल है, एक एक फर्द इंशाअल्लाह आखिर तक यहाँ पे रहेगा और अपनी हाजिरी दर्ज कराएगा ताकि रोजे महशर सुरखरू हो सके। अब मैं चूंकि सिरसवा में शिरकत के लिए एक मुसद्दस का बंद पेश करके जनाब वकार साहब को आवाज दूंगा। सारी दुनिया में है जहरा के सिवा घर किसका, भूख में भी जहां मिस्कीनों पे होती है आता, सब हो फाके से मगर बांट दे सब अपनी ग़िज़ा। अर्श पे जाके फरिश्तों ने कहा तो होगा, अज़मतें सब दर ज़हरा की भिखारी निकली, रोटियां दहर के सूरे से भी भारी निकली। हाय 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 हाय, अज़मतें सब दर ज़हरा की भिखारी निकली, रोटियां दहर के सूरे से भी भारी निकली। आप देख लिए, कैमरा देख ले, मैं झूठ नहीं बोलता। निजामत में मेरे पास बस 4 ही चांद हैं। इसके बाद वकार साहब के बाद में शम्स तबरेज साहब, हसन मेहदी मीरपुरी साहब, उनके बाद में कलीम असगर बिजनौरी साहब, खुर्शीद साहब। यह बीच में एक टोटका दूर करने के लिए आ गया। ठीक ठीक, हाँ हाँ हाँ, तुम पढ़ो इंशाल्लाह। सुबह को आप लोग तशरीफ लाइएगा और अशफाक भाई पढ़ेंगे। वकार सुल्तानपुरी साहब, इनके साथ तो सुल्तानपुरी लगा दिया। बाकी 2 कहाँ के हैं, 2 कहाँ के हैं ये बताने की जरूरत ही नहीं। एक स्टेज के पूरब में 2 बैठे हुए हैं, स्टेज के पश्चिम में 2 बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह ये दोनों पढ़ेंगे। इनके बाद में मैं गुजारिश करूंगा शायर अहले बैत जनाब वकार सुल्तानपुरी जो यहीं के हैं और यहाँ की शनाख्त है,
यहाँ की पहचान है पूरी दुनिया में। और चाहे चंद ही बरस सही मगर हमारे सीनियर हैं। आज मान लीजिए आप तो हमारे सुल्तान दारिस में भी सीनियर हैं और यूं भी शायरी में भी सीनियर हैं, डाइस में भी सीनियर हैं। मेरी आवाज को महफूज रखना, मुझे लम्हे नहीं सदियां सुनेंगी। एक ऐसी आवाज जो सदियों की जमानत है, जनाबे शायर अहले बैत आली जनाब मौलाना क़िबला काबा वक़ार हैदर खां सुल्तान पूरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अंसार वक़ार इख्तिसार सब इनकी काफिया जी। डॉक्टर साहब आज निज़ामत हो गई वाकई माशाअल्लाह। ये अजीम जश्न आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जितने भी हाजरीन हैं बीबी ज़हरा सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और हमारे बानिया जश्न जनाब कमर हैदर साहब की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए शहज़ादी, ताकि इसी तरीक़े से इससे भी बढ़ चढ़ के शहज़ादी की महफ़िल बर्पा कर सके। एक मतला एक शेर आपकी खिदमत में पेश करूँ, बहुत ही इख्तिसार से। मेहमान शुआरा हैं, वक्त पे महफ़िल ख़त्म होनी है। सलवात इरशाद फरमाए बाबा से बुलंद। माज़ी को याद करके न पछताइए जना, माज़ी को याद करके न पछताइए जना। माजी को याद करके न पछताइए जनाब। अब भी दरे अली पर चले आइए जना। वाह 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 वाह। अब भी दरे अली पर चले आइए जना। हिम्मत लगे है हक के फिदक की फिदक की जिए बया, मिंबर से वरना उतर आइए। उतर आइए मिंबर से वरना उतर आइए जना। मिंबर से वरना उतर आइए जना। मौला अब्बास का आलम उठाने वालों, ये शेर तोहफतन आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ बतौर खास। टूटा आलम को देख के, टूटा आलम को देख के गर आपका निकाह। टूटा आलम को देख के गर आपका निकाह। दोबारा जाके अक़द तो, दोबारा जाके अक़द तो पढ़वाइए जना। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या कहने। आइए जना। अभी दरे अली पर चले आइए जना। अभी दरे अली पर चले आइए जना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
क्या कहना क्या कहना? गासिब सदक का कौन है बतलाइए जनाब, वरना है तूतड़ा समझ जाइए जनाब। एक मतलब 2-3 शेर शहजादी की बारगाह में यह मतलब पेश कर रहा हूँ बतौर खास वादा फरमाया। देखिए मतलब पेश खिदमत है। सब फरिश्ते सब फरिश्ते बड़ी हसरत से नजर रखते हैं। सब फरिश्ते बड़ी हसरत से नजर रखते हैं। हम जो ज़हरा तेरी दहलीज पे सर रखते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद वक़ार भाई। हम जो ज़हरा तेरी दहलीज पे सर रखते हैं। मशवरा कर लिया करते हैं खुदा से हम लोग। मशवरा कर लिया करते हैं खुदा से हम लोग। तेरी तस्बीह के दाने ये असर रखते हैं। जिंदाबाद वाह वाह। के दाने ये असर रखते हैं। तेरी तस्बीह। अब जो शेर पेश करने जा रहा हूँ वादा फरमाइएगा, शायद किसी लायक हो। इरशाद इरशाद बतौर खास। वाह वाह। तेरी तस्बीह के दाने ये असर रखते हैं। पूरे मजमे की तवज्जो चाहता हूं। हमको दीवारों में चुनवाने की कोशिश ना करो। हमको दीवारों में चुनवाने की कोशिश ना करो। हम तो काबे में भी गुंजाइशे दर रखते हैं। हम तो काबे में भी गुंजाइश दर रखते हैं। वक़ार भाई क्या शेर है। हाँ हाँ हाँ, हम तो काबे हमको दीवारों में चुनवाने की कोशिश ना करो। हम तो काबे में भी गुंजाइश वाह वाह वाह। दर रखते हैं। बहुत अच्छा शेर है भाई। काबे
वाह 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 वाह। दर रखते हैं। आखिरी शेर और आपकी जहमत तमाम के हवाले से। हम तो काबे में बेगुंजाइश दर रखते हैं। छोटे हजरत के हवाले से शेर मौला अब्बास के हवाले से। लफ्ज़ अब्बास की है बत है लुगत पे ज़ाहिर। क्या मिसरा है, जिंदाबाद। लफ्ज़ अब्बास की हैबत है लुगत पर ज़ाहिर, जिंदाबाद। लफ्ज़ अब्बास लुगत डिक्शनरी। लफ्ज़ अब्बास की है बत है लुगत पे ज़ाहिर। ज़ेर रखते नहीं हरफों पा ज़बर रखते हैं। वाह 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 वाह। नहीं हरफों पर ज़बर भाई जिंदाबाद, ज़फ़र भाई जिंदाबाद। रखते हैं। बीबी ज़हरा का सदका है जो आज हम जिंदा हैं और शादो आबाद है। मौला इसी जश्न के सदक़े में सबकी मुरादों को बीबी ज़हरा कबूल फरमाए। एक शेर आपकी जानिब से पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए। इसमें सब आप शरीक हैं। तेरी दहलीज़ के ज़रों का करम है बीबी। ज़र्रों का करम है बीबी। तेरी दहलीज़ के ज़रों का करम है बीबी। अपने दामन में जो हम शमशो कमर रखते हैं। वाह वाह वाह। अपने दामन में जो हम शमशो कमर रखते हैं। अपने दामन में जो हम शमशो कमर रखते हैं। कौन समझे तेरी तौसीफ के मिसरों का विकार। वाह 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 वाह। कौन समझे तेरी तौसीफ के मिसरों का विकार। एक ही बैत पे हम मुल्क में घर रखते हैं। एक ही बैत पे हम खुद में घर रखते हैं। नारा हैदरी। कहने भाई बहुत उम्दा वक़ार साहब। अब आप फैसला करिए दोनों भाई में कौन ज्यादा अच्छा पढ़ता है। फैसला ही मुश्किल है। दोनों भाई में कोई कौन ज्यादा अच्छा पढ़ता है, फैसला ही मुश्किल है। दोनों भाई एक से एक कसम खुदा की। ना ना ज़हूर भाई अपना कुछ कहिए, अपना कुछ कहिए। अब कहीं कहीं ना कहिए, अब हर जगह यही कहिए। अच्छा अब आइए ज़हूर भाई, कसम खुदा की मैं एक इजाजत चाहूंगा। सिर्फ एक खते के बाद एक शायर को पुकारूंगा, मगर अगर किसी शायर के एक शेर पे तबसरा हो जाए तो भी आज अफजल भाई आज की महफिल की यादगार हो जाएगी। एक तबसरा करने का जी चाह रहा है और बहुत प्यार। वो शेर जो इनका था कि जब आपका निकाह अलम देख के टूट गया तो फिर आप पहले जाइए निकाह पढ़वाइए, फिर दूसरा काम करिए, उसमें बिल्कुल देर न करिए। उस पर तबसरा करने का जी चाह रहा है। कमर हैदर खान साहब, सलाम अलैकुम।
सलामत रहिए कसम खुदा की। यहाँ जो शादियां होती हैं, यहाँ जो निकाह पढ़े जाते हैं, देख रहे हैं कितना शानदार रिजॉर्ट बना दिया, महल। अब उधर साहब लखनऊ तौसी पाके सुल्तानपुर तक आ गया, यानी पुराना वाला अवध जो था, जो सरहदें जुड़ी हुई थी, वो फिर एक बार हो गया। ये लग रहा है बिल्कुल लखनऊ में है। माँ क्या ताज में ये शान होगी। आप ये देखें, ये सच्चे तरोताजा गुलाबों से सजी हुई शहनशीन, उसमें ये फानूस, उसमें ये कुमकुमे, उनमें वो सच्चे जौहर, वो मोती, वो उसमें याकूत, वो जमुर्रत, वो जबरजद, और उसके बाद वो हीरे और वो पन्ना, ये सितारे, ये कहकशां, और ऐसा लगता है कि यहाँ मध्यम मगर खुशगवार रोशनियों से पड़े हुए ये झूमर और ये तहजीब, ये दीवार, ये दर, ये दरवाजे, वो सच्चे गुलाबों से सजा हुआ, खुशबुओं में नहाया हुआ मडवा, और उसके बाद ये दहलीज, ये दरवाजा। यहाँ पे जो शादियाँ होती हैं, जो निकाह होते हैं, वो कितने मोहतरम, कितने पाकीज़ा होते हैं। अली वालों के यहाँ पे निकाह होते हैं। मगर आपको बताऊं, जो जहरा के दुश्मन हैं, वो कसम खुदा की, एक मुल्ला आके मुझसे पूछने लगा, तो भाई वो ये पूछने लगा, सुनो सुनो, वो पूछने लगा कि ये बताइए, आप कहते हैं कि जहरा का दुश्मन अख्तर है, आले रसूल का दुश्मन अख्तर है, अब बेटे तो आज भी पैदा होते हैं। तो मैं कहता हूँ सुनिए, वो अख्तर था, अख्तर है, अख्तर रहेगा। कैसे? कि जो अली के दुश्मन हैं, वो अक्सर अपना निकाह मुहर्रम में पढ़ाते हैं। अरे बाप रे बाप, खुदा की, मुहर्रम में निकाह पढ़ाते हैं। निकाह पढ़ के वो सुल्तानपुर की सड़कों से लखनऊ तक चले जाइए तो दाएं बाएं निकलते हैं। अरे साहब, अभी तो निकाह पढ़ के निकले थे, वो एक कलम का जुलूस आ गया, घर जाने से पहले टूट गया। अब जो बच्चे पैदा होंगे वो मंसूब तो होंगे, मगर उनके नहीं होंगे। अख्तर थे, अख्तर हैं, अख्तर रहे। कहां बैठे? अरे कयामत है, नारे हैदरी। अब आइए, जिस शायर को मैं बुलाने जा रहा हूँ, पूरी दुनिया का चहीता शायर, मगर उसको मैं 4 मिसरों से, और चूंकि वो बैनुल अक़वामी शायर है, तो जनाब हसनैन अकबर साहब के 4 मिसरों के साथ मैं उनको आवाज दूंगा। मतलब है तो पूरी मनक़बत, मगर एक मतलब एक शेर जो वादा है वो तो वादा। खाक में, हम लोग मिट्टी से बने हैं, खाक में खाक बशर फिर से मिला दे जहरा। खाक में, शेर सुनिए कैफियत, अगर तवज्जो से सुना आपने तभी आप दाद दे पाएंगे, वरना ये कैमरा आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देगा। खाक में खाक बशर फिर से मिला दे जहरा, अपनी चक्की को अगर उल्टा चला दे जहरा। खाक में खाक बशर फिर से मिला दे जहरा। हाय हाय हाय, खाक में फिर से मिला दे जहरा, अपनी चक्की को अगर उल्टा चला दे जहरा। खाक में खाक बशर फिर से मिला दे जहरा, अपनी चक्की को अगर उल्टा चला दे जहरा। रोज कहते हैं अली, रिस्क की तकसीम के वक्त रिस्क देना है किसे कितना, बता दे जहरा। रोज कहते हैं अली, रिस्क की तकसीम के वक्त खाक बशर फिर से मिला दे जहरा, अपनी चक्की को अगर उल्टा चला दे जहरा। रोज कहते हैं अली, रिस्क की तकसीम के वक्त रिस्क देना है किसे कितना, बता दे जहरा। रिस्क देना है किसे कितना, बता दे जहरा। उसी गर्मी के साथ, उसी गर्म जोशी के बाद ये सर्दी देख रहे हैं आप, जहां सूरज भी लिहाफ को ओढ़ के सारा दिन निकल जाता है, दिन आने से पहले जाने की तैयारियां करने लगता है। जहां इंसान बर्फ हुआ जा रहा है, वहां पे आपके इश्क़ अहले बैत की ये गर्मी और ये गर्मजोशी आज माहौल को पूरी दुनिया से बता रहा है कि जब दुनिया सर्दियों में सो जाती है तब अली वाले जागते नजर आते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ शायर अहले बैत जनाब शम्स तबरेज़ साहब से कि वो तशरीफ ले आए, बारगाह शहज़ादी कौनैन, बारगाह रसूल वाले रसूल में ख़िराज अक़ीदत पेश करें। नारे हैदरी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ से तकरीबन 12 बजने में 40 मिनट रह गए हैं और मेरे ख्याल से 4 शोरा हैं। नैयर भाई 4 शोरा हैं, 12 बजने में 40 मिनट बाकी हैं अभी। नहीं हमें मिला के 4, तो ये 10-10 मिनट मुअय्यन भी कर देता हूँ यहीं से, और मैं खुद पे भी ये लागू कर देता हूँ।
भाई खुर्शीद भाई बहुत शुक्रिया। और मैं इंशाल्लाह ख़त्म भी कर दूंगा उसमें। हाँ ज़्यादा सुना दूं ये एक अलग मसला है, लेकिन मिनट में ख़त्म कर दूंगा। मुलाहिज़ा फरमा ले, हाजिर करता हूँ कि ये सच है अगर दहर में अहमद नहीं होते, ये सच है अगर दहर में अहमद नहीं होते, तौहीद के असरार बरामद नहीं होते। ये सच है अगर दहर में अहमद नहीं होते, तौहीद के असरार पर। एक कलाम तकरीबन आज से 6-7 साल पहले आपके यहाँ पढ़ा था, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है, फिर उसके बाद वो पूरी दुनिया में पहचाना गया। ये बिल्कुल नया कलाम है, आज पूरा आपको सुना रहा हूँ। ये सच है अगर दहर, इसकी तमहीद मुलाहिजा कीजिएगा, नतीजा देख लीजिएगा। ये सच है अगर दहर में अहमद नहीं होते, तौहीद के असरार बरामद नहीं होते। मिलती न ज़बानों को कभी नुत्क़ की दौलत, मिलती न ज़बानों को कभी नुत्क़ की दौलत, हरफों पर कभी ज़ेरो ज़बर मद नहीं होते। मिलती न ज़बानों को कभी नुत्क़ की दौलत, हरफों पर कभी ज़ेरो ज़बर मद नहीं होते। हादी ही न होते न हिदायत कभी होती, अरशद ही न होता कोई मुर्शद नहीं होते। हादी ही न होता न हिदायत कभी मिलती, अरशद ही न होता कोई मुर्शद नहीं होते। माबूद की पहचान भला कौन कराता, माबूद की पहचान भला कौन कराता, होती न इबादत ये मुअब्बद नहीं होते। माबूद की पहचान भला कौन कराता, होती न इबादत ये मुअब्बद नहीं होते। ये चांद ये सूरज कभी पैदा नहीं होते, ये चांद ये सूरज कभी पैदा नहीं होते। तौलीद न होती ये मुअल्लद नहीं होते, ये चांद ये सूरज कभी पैदा नहीं होते। तौलीद न होती ये मुअल्लद नहीं होते। ये आग न मिट्टी न हवा और न पानी, ये आग न मिट्टी न हवा और न पानी, आफाक में ये बहरे मुजर्रद नहीं होते। ये आग न मिट्टी न हवा और न पानी, आफाक में ये बहरे मुजर्रद नहीं होते। सजदों की निशानी भी जहां में नहीं होती, सजदों की निशानी भी जहां में नहीं होती। शैतान के अफकार मुक़य्यद नहीं होते, सजदों की निशानी भी जहां में नहीं होती। शैतान के अफकार मुक़य्यद नहीं होते। मीसाक़े अलस्तो की हकीकत नहीं होती, मीसाक़े अलस्तो की हकीकत नहीं होती। खालिक से कभी अहद मुशद्दद नहीं होते। गर इनकी इबादत का तसव्वुर नहीं होता, तकलीद न होती ये मुक़ल्लद नहीं होते। गर इनकी इबादत का तसव्वुर नहीं होता, तकलीद न होती ये मुक़ल्लद नहीं होते। गर ज़ाते मोहम्मद नहीं होती सरे मैदा, गर ज़ाते मोहम्मद नहीं होती सरे मैदा, झूठों के दलाइल भी कभी रद्द नहीं होते। गिरता न ज़मीं पर जो मोहम्मद का पसीना, याकूत न होते ये ज़मुर्रद नहीं होते। लेकिन ये हकीकत है, हदीसों में बजा है, ज़हरा नहीं होती तो मोहम्मद नहीं। वाह वाह वाह। बिल्कुल नया कलाम है। नया कलाम है बिल्कुल। आप बहुत उम्दा। क्या देखिए आप, मैंने 12 अशार सुना दिए आपको। मौला सलामत रखें, मौला आबाद रखें आपको। यहाँ से मुलाहिज़ा फरमा लें एक मतलब चंद अशार, इसमें भी इसकी भी तमहीद देखिएगा। और हाजिर करता हूँ मौला आप सबको। ये सच है अगर दहर में अहमद नहीं होते, तौहीद के असरार पर। अब यहाँ के बाद हिफ्ज़ हो जाएगा, बाकायदा पढ़ा जाएगा इंशाल्लाह। फिर दोबारा पलट के फरमाइश होगी, फिर सुल्तानपुर में पढ़ेंगे 1 साल के बाद। ये सच है अगर दहर में अहमद नहीं होते, तौहीद के असरार बरामद नहीं होते। यहां से मतलब समाप्त करें। कौन था वो जो शबनम की आवाज में इन अज़ानों के नगमे सुनाता रहा। सिर्फ ये आखिरी कलाम सुन लीजिए, मेरा वक्त अभी बाकी है। कौन था वो जो शबनम की आवाज में इन अज़ानों के नगमे सुनाता रहा। कौन बादे सबा बन के इस दहर में सारे फूलों की खुशबू बढ़ाता रहा।
कौन वादे सबा बन के इस दहर में सारे फूलों की खुशबू बढ़ाता रहा, किसका लहजा था कुरान का हम ज़बां, कौन हर एक की इज्जत बचाता रहा, कौन था जो नमाजों की मेराज था, जंग में भी मुसल्ला बिछाता रहा। वाह 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 वाह, हाय हाय, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाका। इसका भी नतीजा देखिएगा, कौन था जो, चूंकि आप शायरी सुनते हैं, वाह मतलब कहने वाली नहीं कि मैं कह रहा हूं कि आप शायरी सुनते हैं, रियल में शायरी सुनते हैं, इसलिए ये इंतखाब सुना रहा हूं। कौन था वो जो शबनम की आवाज में इन अजानों के नगमे सुनाता रहा, कौन वादे सबा बन के इस दहर में सारे फूलों की खुशबू बढ़ाता रहा, किसका लहजा था कुरान का हम ज़बां, कौन हर एक की इज्जत बचाता रहा, कौन था जो नमाजों की मेराज था, जंग में भी मुसल्ला बिछाता रहा। बादलों की गरज में है किसकी सदा, किसने बारिश की बूंदों को नाजिल किया। हाय हाय हाय, बादलों की गरज में है किसकी सदा, किसने बारिश की बूंदों को नाजिल किया। तशनगी भी जहां की बढ़ाता रहा और पानी भी खुद ही पिलाता रहा। हाय 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 हाय, बादलों की गरज में है, जज़ाकल्लाह। बादलों की गरज में है किसकी सदा, बादलों की गरज में है किसकी सदा, किसने बारिश की बूंदों को नाजिल किया। तशनगी भी जहां की बढ़ाता रहा और पानी भी खुद ही पिलाता रहा। किसने आखिर फरिश्तों को दी रोटियां, किसके दर के फरिश्ते गदागर बने, कौन फाकों पे फाके भी करता रहा, फिर भी सारे जहां को खिलाता रहा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे, एक मिसरा जाया नहीं होने देने। देखिए हक है सर्दी में ये दो जो सफ है इससे मैं शिकवा कर सकता हूँ, ठंड हमें भी लग रही है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग साथ हो जाएंगे, वो लोग जुड़े हुए थोड़ा सा आप लोग जुड़ जाइए। कौन था वो जो शबनम की आवाज में इन अजानों के नगमे सुनाता रहा, बादलों की गरज में है किसकी सदा, किसने बारिश की बूंदों को नाजिल किया। तशनगी भी जहां की बढ़ाता रहा और पानी भी खुद ही पिलाता रहा। सारे दरिया पहाड़ आसमानो जमी बागे जन्नत भला किसके सदक़े में है, सारे दरिया पहाड़ आसमानो जमी बागे जन्नत भला किसके सदक़े में है। चांद तारों को दी है ये किसने जिया, कौन मगरिब से सूरज उगाता रहा। हाय हाय, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तमहीद पहुंच जाए डॉक्टर साहब, फिर लुत्फ आएगा। बादलों की गरज में है किसकी सदा, किसने बारिश की बूंदों को नाजिल किया। तशनगी भी जहां की बढ़ाता रहा और पानी भी खुद ही पिलाता रहा। जब फरिश्ते न थे और न लौहो कलम, कुर्सियों अर्श कुछ भी न था और वो था। हाय 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 हाय, जब फरी, बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई, कलीम भाई, वकार भाई, सरकार अल्लामा, बहुत शुक्रिया आप तमामी हजरात का। जब फरिश्ते न थे और न लौहो कलम, कुर्सियों अर्श कुछ भी न था और वो था। कौन था जिसकी तख्लीक पहले से थी, कौन आदम का पुतला बनाता रहा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला साहब हैदर हैदर हैदर। बहुत शुक्रिया मेहदी भाई, बहुत शुक्रिया, आप लोगों को देख के शायरी सीखी है, बहुत शुक्रिया आप सभी। कौन था वो जो शबनम, ये इंतखाब था सुल्तानपुर के लिए डॉक्टर साहब। कौन था वो जो शबनम की आवाज में जब फरिश्ते न थे और न लौहो कलम, कुर्सियों अर्श कुछ भी न था और वो था। कौन था जिसकी तख्लीक पहले से थी, कौन आदम का पुतला बनाता रहा, किसने आखिर सलूनी सलूनी कहा। कौन था आली में राहे अर्जो समा, किसने आखिर सलूनी सलूनी कहा। कौन था आली में राहे अर्जो समा, ये अरब इनकी औकात ही क्या भला, कौन जिब्रील को भी पढ़ाता रहा।
जज़ाकल्लाह मौला सलामत रखे। बस गुरेज के बंद सुन लीजिए और नतीजे का बंद सुन लीजिएगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं फिर हाजिर कर रहा हूँ। जब फरिश्ते न थे और न लौहो कलम कुर्सी अर्श कुछ भी न था, और वो था कौन था जिसकी तख्लीक पहले से थी? कौन आदम का पुतला बनाता रहा? किसने आखिर सलूनी सलूनी कहा? कौन था आलिम राहे अर्जो समा? ये अरब इनकी औकात ही क्या भला? कौन जिब्रील को भी बहाता रहा? आई आवाज़ गैबी बरोज़े जज़ा, किसने बख्शा बताओ तुम्हें हौसला? हिम्मतें कुव्वतें ताकतें रिफतें कौन था जो मुसलसल बढ़ाता रहा? किसकी आवाज में मेरी आवाज थी? किसके चेहरे के पर्दे के पीछे था मैं? किसकी आवाज में मेरी आवाज थी? किसके चेहरे के पर्दे के पीछे था मैं? जिस्म मेरा नहीं फिर भी दुनिया को मैं किसके चेहरे में चेहरा दिखाता रहा? अरे जब ये बातें रसूलों से पूछी गई, सबने मिलकर खुदा से बस इतना कहा, एक नामे अली था जो हर दौर में हर पैगंबर की इज्जत बचाता। जज़ाकल्लाह मौला सलामत रखे, मौला आबाद रखे। हक अदा हो गया हमारा, मौला आप सबको सलामत रखे, मौला आबाद रखे। 1 मिनट आगे निकल गया, 21 पे आया था 32 हो गए। सिर्फ 2 शेर की ज़हमत है, तमाम कर दिया। जब फरिश्ते न थे और न लौहो कलम कुर्सी अर्श कुछ भी न था, और वो था कौन था जिसकी तख्लीक पहले से थी? कौन आदम का पुतला बनाता रहा? जब ये बातें रसूलों से पूछी गई, सबने मिलकर खुदा से बस इतना कहा, एक नामे अली था जो हर दौर में हर पैगंबर की इज्जत बचाता रहा। जब रसूलों की आवाज थमने लगी, फिर रसूलों से आकर ये बोले नबी, तुम तो तुम, मैं मोहम्मद भी हर जंग में सिर्फ नादे अली गुनगुनाता। हाय हाय हाय। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह मौला सलामत रखे, मौला आबाद रखे। भाई चूंकि ये जश्न खातून जन्नत के हवाले से है, इसलिए बस ये नतीजे का शेर सुन लीजिए, जहमत तमाम। जब ये बातें रसूलों से पूछी गई, सबने आखिरी शेर, जब ये बातें रसूलों से पूछी गई, सबने मिलकर खुदा से बस इतना कहा, एक नामे अली था जो हर दौर में हर पैगंबर की इज्जत बचाता रहा। जब रसूलों की आवाज थमने लगी, फिर रसूलों से आकर ये बोले नबी, तुम तो तुम, मैं मोहम्मद भी हर जंग में सिर्फ नादे अली गुनगुनाता रहा। ऐ रसूलो रुको, ऐ रसूलो रुको, ये हकीकत सुनो, ये फजीलत फकत इस मोहम्मद की है। वो तो सब कुछ था, फिर भी हमेशा मुझे फातिमा के कसीदे सुनाता। हाय हाय हाय। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हैदर हैदर। शम्स तबरेज की मदह थी, या मारिफत का एक दरिया था जो बहता चला जा रहा था, और आप सबके अज़ान आलिया उस दरिया में नहाते चले जा रहे थे। क्या कैफियत थी, क्या खुलूस था, क्या जज्बा था, क्या लफ्ज़ें थी, क्या माना थे, क्या तख़य्युल थे, क्या ख्यालात थे, क्या अफ़कार थे, क्या रियायतें थी, क्या निस्बतें थी। बस अब जरा सा इसके बाद वाली निजामत उधर हो गई, निजामत दो। तो खुदा लगा या ले, क्या कहने साहब। बांटने वाला साक़ी कौसर, जाम खुदा का होता है, काम मेरा मौला करता है, नाम खुदा का होता है। शायर अहले बैत मौलाना हसन मेहदी मीरपुरी साहब, प्रोफेसर शिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, मैं उनको बुलाने से पहले एक बस एक मतला एक शेर या 4 मिसरों की मैंने जो
बात की थी उससे आगे नहीं जाऊंगा, 3 शेर नहीं होंगे। और शायरों में भी जो शम्स साहब ने इम्तियाज बना दिया है, इंशाअल्लाह उसी पे हम लोग चलेंगे। अब उसके बाद कहने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे शुअरा और निजामत में इतना तालमेल है कि निजामत करने की जरूरत नहीं है, शुअरा खुद ही निजामत कर ले रहे हैं। तो आइए अब अगले शायर तक। मैं एक शायर ने दूसरे शायर के लिए निजामत कर दी है, जो मुझे कहना होता है वो शायर खुद कह देता है, इसलिए यही निजामत। अच्छा, आज तो निजामत की कोई जरूरत नहीं है, कुछ उधर से कह दिया जाता है, कुछ इधर से कह दिया जाता है। यहाँ तो हम सिर्फ अली हैदर साहब के पास बैठे हैं, ATM के पास बैठ जाओ और बाकी सारा काम तो इधर उधर से हो जाएगा। अब आइए मैं 4 मिसरे सिर्फ पेश करूंगा। मधे ज़हरा में ये अंदाज़े बयां रखते हैं, हम तसव्वुर में भी फसले दो कमा रखते हैं। इस पे हैरत नहीं हक फातिमा का छीन लिया, इस पे हैरत है वो उम्मीद जना रखते हैं, इस पे हैरत है वो उम्मीद जना रखते हैं। शायर अहले बैत जनाब मौलाना ज़ाकिर अहले बैत मौलाना हसन मेरी मीरपुरी साहब, नारे है। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मैं तमाम हाज़रीन की बारगाह में इस शब की और इस शब में मुनक़िद जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो हूँ कि जिसने भी इस जश्न में जिस एतबार से दामे दिरमे सुखने शिरकत की है, उन सब की तमाम दिली मुरादों को पूरा फरमा। आगाज़ करता हूँ 4 मिसरों से। एक ही आदमी के ख्वाब नहीं साहब, इनकी दुआएं जब यहाँ से पलटती हैं तो लालो गहर बन के मिलती हैं। मुलाहिज़ा फरमाए कि ख्वाब भी है मोतबर और ख्वाब की ताबीर भी, ख्वाब भी है मोतबर ख्वाब की ताबीर भी, और ख्वाब की ताबीर भी अब जली हरफों से लिखी जाएगी तकदीर भी। वाह, ख्वाब भी है मोतबर और ख्वाब की ताबीर भी अब जली हरफों से लिखी जाएगी तकदीर भी। ये हुसैन इब्ने अली की माँ है, इनकी शान में ओढ़ कर आती है चादर आए ततहीर भी, ओढ़ कर आती है चादर। ये हुसैन इब्ने अली की माँ है, इनकी शान में ओढ़ कर आती है चादर आए ततहीर भी। क्या कहने पे हसन मेहदी साहब? ये हुसैन इब्ने अली की माँ है, इनकी शान में बहुत अच्छा है भाई। ये हुसैन इब्ने अली की माँ है, इनकी शान में ओढ़ कर आती है चादर आए है ततहीर भी। कोई बात नहीं, आप खामोश हैं, चुप ही रहते हैं मियाँ, हम भी कहाँ बोलते हैं। चुप ही रहते हैं मियाँ, हम भी रहते हैं मियाँ, हम भी कहाँ बोलते हैं। ज़ेब देता है जहाँ हमको वहाँ बोलते हैं। चुप ही रहते हैं मियाँ, हम भी कहाँ बोलते हैं। ज़ेब देता है जहाँ हमको वहाँ बोलते हैं। अरे कौन समझेगा मोहम्मद के घराने की ज़बान, जन्नती लोग हैं जन्नत की ज़बान बोलते हैं। कौन समझेगा मोहम्मद के घराने की ज़बान, जन्नती लोग हैं जन्नत की ज़बान बोलते हैं। और सबकी किस्मत में कहाँ में अभी हा होना, ऐसी बेटी हो तो बेटी को भी माँ बोलते। वाह 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 वाह। सबकी किस्मत में कहाँ में अभी हा होना, सबकी किस्मत में कहाँ में अभी हा होना। ऐसी बेटी हो तो बेटी को भी माँ बोलते हैं। और जिसमें रहते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसे, ऐसी तहजीब में बूढ़ों को जवां बोलते, ऐसी
तहजीब में बूढ़े को जवां बोलते हैं, ऐसी तहजीब में बूढ़े को जवां बोलते हैं, जिसमें रहते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसे, ऐसी तहजीब में बूढ़े को जवां बोलते हैं। मुलाजा फरमाए एक मतला और चंद अशार आखिर में वक्त का लिहाज रखते हुए एक सलवात पढ़ने हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक मतला और भैया जल्दी कर ले साहब, जल्दी करो, कहाँ करते लगे यार, बस करो, बैठ जाओ। अरे नहीं ये देखेंगे एक मतला बराए चलो फिर से पढ़िए, नाराए हैदरी। एक मतला जो कि बराए मतला है और दो शेर, दो शेरों में पहले शेर में एक इस्तेजाब की कैफियत है और दूसरे शेर में उसको दूर करने की कोशिश की है। अब कहाँ तक मैं कामयाब हुआ हूँ ये फैसला आप करेंगे। मुलाजा फरमाए कि कायनाते इस्मतो इफ़्फ़त का महवर फातिमा, कायनाते मौलाई मजमा है, अज़ादारों का मजमा है ये, कायनाते इस्मतो इफ़्फ़त का महवर फातिमा, कायनाते इफ़्फ़तो इस्मत का महवर फातिमा, आलमे निस्वा की गैरत का मुकद्दर फातिमा, कायनाते इस्मतो इफ़्फ़त का महवर फातिमा, आलमे निस्वा की गैरत का मुकद्दर फातिमा, हैं अज़ादारों के आंसू आपके रूमाल में, हैं अज़ादारों के आंसू आपके रूमाल में, आपके अश्कों का मस्कन है कहाँ पर फातिमा। हैं अज़ादारों के आंसू, हैं अज़ादारों के आंसू, हैं ये इस्तेजाबी कैफियत है अज़ादारों के आंसू आपके रूमाल में, आपके अश्कों का मस्कन है कहाँ पर फातिमा। तो आपके अश्कों से कौसर की बिना रखी गई, इसलिए हैदर बने साकी ये कौसर फातिमा। आपके अश्कों से कौसर की बिना रखी गई, बहुत अच्छा ख्याल है आज़ादारों के आंसू आपके रूमाल में, आपके अश्कों का मस्कन है कहाँ पर फातिमा। आपके अश्कों से कौसर की बिना रखी गई, इसलिए हैदर बने साकी ये कौसर फातिमा, इसलिए हैदर बने साकी ये कौसर फातिमा। आखिर में एक मतलब चंद शेर मुलाजा फरमाए कि जहां रिदा में भी पैबंद पाए जाते हैं, आप जैसे चाहे वैसे सुने कि जहां रिदा में भी पैबंद पाए जाते हैं, वहीं पे खुल्द से जोड़े मंगाए जाते हैं। जहां रिदा में भी पैबंद पाए जाते हैं, वहीं पा खुल्द से जोड़े मंगाए जाते हैं। और जमाने भर में फकत फातिमा की ड्योढ़ी है, जमाने भर में फकत फातिमा की ड्योढ़ी है, जहां फरिश्ते भी दर्जी बनाए जाते हैं। जहां 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 रिदा में भी पैबंद पाए जाते हैं, वहीं पा खुल्द से जोड़े मंगाए जाते हैं। और जमाने भर में फकत फातिमा की ड्योढ़ी है, जहां फरिश्ते भी दर्जी बनाए जाते हैं। और चमन में रह के ये फूलों से सीखना होगा, चमन में रह के ये फूलों से सीखना होगा कि कैसे कांटों से दामन बचाए जाते हैं। वाह। जहां रिदा में भी पैबंद पाए जाते हैं, वहीं पा खुल्द से जोड़े मंगाए जाते हैं। चमन में रह के ये फूलों से सीखना होगा कि कैसे कांटों से दामन बचाए जाते हैं।
नसीब हुर से ये कहता था उस दयार में चल, नसीब हुर से ये कहता था उस दयार में चल, जहां दिलेरी से मुर्दे जिलाए जाते हैं। नसीब हुर से ये कहता था उस दयार में चल, जहां दिलेरी से मुर्दे जिलाए जाते हैं। और वो बाबे हुर है, वहां से कोई नहीं आता, वहां से सिर्फ आजादार लाए जाते हैं। अरे वाह वाह, वो बाबे हुर है, उधर से कोई नहीं आता, वहां से शह के आजादार लाए जाते हैं, वहां से शह के आजादार लाए जाते हैं। और मैं रोज हुर के मुकद्दर से बात करता हूँ, मैं रोज हुर के मुकद्दर से बात करता हूँ, रोज हुर के मुकद्दर से बात करता हूँ। गुनाह किस लिए मेरे गिनाए जाते हैं। रोज हुर के मुकद्दर से बात करता हूँ, गुनाह किस लिए मेरे गिनाए जाते हैं। किसी का जोर नहीं है किसी जमाने पर, किसी का जोर नहीं है कहीं जमाने पर, हुसैन सारे जमाने पर छाए जाते हैं। किसी का जोर नहीं है कहीं जमाने पर, हुसैन सारे चलिए बदल देता हूँ, जमाने वाले जमाने के मातहत है, मगर जमाने वाले जमाने के मातहत है, मगर हुसैन वाले जमाने पर छाए जाते हैं। जमाने वाले जमाने के मातहत है, मगर हुसैन वाले जमाने पर, ये शेर बतौर खास हुसैन वाले जमाने पर छाए जाते हैं। तो पलटने वाला है हुर के नसीब का सूरज, अजान के लिए अकबर बुलाए जाते हैं। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। पलटने वाला है हुर के नसीब का सूरज, पलटने वाला है हुर के नसीब का सूरज, अजान के लिए अकबर बुलाए जाते हैं। इधर उधर उरूसे शहादत है मुंतजिर रन में, इधर ख़याम में दूल्हे सजाए जाते हैं। उधर उरूस वो दो तीन शब्द, उधर उरूसे शहादत है मुंतजिर रन में, इधर ख़याम में दूल्हे सजाए जाते हैं। तो पुकारा सीने अकबर वफा के मक्तल में, चराग खूने जिगर से जलाए जाते हैं। चराग खूने गुरूरे नेज़ो खंजर लहू में डूब गए, मगर कटे हुए सर मुस्कुराए जाते हैं, मगर कटे हुए सर मुस्कुराए जाते हैं। तो आखिरी शेर के भरे हैं अश्कों से जिस दिन से हमने मशकीज़े, ये शेर बतौर खास के भरे हैं अश्कों से जिस दिन से हमने मशकीज़े, हर एक समत से नावक चलाए जाते हैं। भरे हैं अश्कों से जिस दिन से हमने मशकीज़े, हर एक समत से नावक चलाए जाते हैं। अजीब फिक्र है मस्जिद पर रोना जायज है, गमे हुसैन पर फतवे लगाए जाते हैं। मीरपुरी साहब। और अब लीजिए हमारे सिर्फ दो शोराए कराम, यानी मक्ते का पहला मिसरा और दूसरा मिसरा। दो शोराए कराम में बहुत कामयाब जश्न हुआ। वकार साहब जल्दी से आप तशरीफ ले आइए, अली हैदर साहब और अंसार भाई को भी लेके आइए। बस दो शोराए कराम, एक तहत जिस पे हजारों तरन्नुम कुर्बान, एक तरन्नुम जिस पे हजारों तहत कुर्बान। ना ऐसा तहत ना ऐसा तरन्नुम, ये दोनों आपस में गले मिलते हुए। मगर मैंने बताया था कि 4 मिसरा खाली पेश करूंगा। मैंने जो इससे पहले के अशआर पेश किए उसी सिलसिले से जमीन में एक कते के साथ शायर अहले बैत जनाब कलीम असगर बिजनौरी इतनी दूर से, मुझे लग रहा है सबसे दूर से तशरीफ लाने वाले शोरा अब मेरी फहरिस्त में मौजूद हैं। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि करीब आ जाएं। जनाब शायर जमाली फरमाते हैं, हम हर एक लफ्ज में मिदहत का जहां रखते हैं, हम हर एक लफ्ज में मिदहत का जहां रखते हैं। जरा सा राहुल सिंह चौहान कैमरा घुमा देना, जो जाने वाले हैं उनकी पहचान रहे।
हम हर एक लफ्ज में मिदहत का जहां रखते हैं, दिल अबू जर का तो मीसम की जबान रखते हैं। मिदहते आले मोहम्मद में खुले तो जाने, यूं तो चौपाए तलक मुंह में जबान रखते हैं, यूं तो चौपाए तलक मुंह में जबान रखते हैं। और अब सेकंड लास्ट पोएट ऑफ दिस स्पिरिचुअल ओकेजन, जनाब कलीम असगर बिजनौरी, एंड आफ्टर दैट फाइनल पोएट मोहतरम खुर्शीद हैदर मुजफ्फर। मैं जनाब मोहतरम कलीम असगर बिजनौरी साहब की खिदमत में सरापा से पास हूं कि वो तशरीफ ले आए, और खुर्शीद हैदर साहब से गुजारिश है कि मेरे पास तशरीफ ले आए। टाइम 8 मिनट बचे हैं, 2 शायर नहीं, अब ऐसा भी नहीं है भाई, अरे 10 का मतलब 12-14 ऐसा नहीं है। देखिए माशाल्लाह जितना अच्छा जश्न हुआ, आप सब हजरात काबिल मुबारकबाद हैं। और जिस तरह से आपने सुना आपने इस वक्त, और बेशक शायर को वही लोग जिंदा रखे हुए हैं जो शेर की कद्र करते हैं, बेशक। और आज की बहरहाल हर चीज़ काबिल मुबारकबाद, ये इंतज़ाम निज़ामत सब शुरा का एक एक शेर। यहीं से एक शेर 4 मिसरे पढ़ता हूँ पहले, और इस जश्न के हवाले से कि गोशा गोशा नूरे ज़हरा से मनव्वर देखिए, गोशा गोशा नूरे ज़हरा से मनव्वर देखिए, इस महल में आइए जन्नत का मंजर देखिए, इस महल में आइए जन्नत का मंजर। देखिए नैयर साहब आपकी मौजूदगी में एक तरकीब है इस शेर में, और पेश करता हूँ कि इस महल में आइए जन्नत का मंजर, इस महल में आइए, क्या कहने कि सारे महल कंडम होते हैं। गोशा गोशा जिक्र ज़हरा से मनव्वर देखिए, इस महल में आइए जन्नत का मंजर देखिए, और आपको देगा खुदा नाते पैगंबर का सवाब। लहजा देख लीजिएगा, आपको देगा खुदा नाते पैगंबर का सवाब, जश्न ज़हरा में अली का नाम लेकर देखिए। अरे वाह 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 वाह, जश्न ज़हरा में अली का आपको देगा खुदा नाते पैगंबर का सवाब, जश्न ज़हरा में अली का नाम लेकर देखिए, जश्न ज़हरा में अली का नाम लेकर देखिए। इन मिसरों के भी गवाह डॉक्टर नैयर साहब हैं, जिस वक्त ये मिसरे हुए थे एक महफिल में, और आज ये पढ़ रहा हूँ मिसरे कि बहुत से बूढ़े हैं ऐसे कि जो बुजुर्ग नहीं। अबूदर भाई मिसरा शेर हो चुका है, बहुत से बूढ़े हैं ऐसे, देखिए हक़ ज़हरा की बात, नाबालिग बहुत से बूढ़े हैं ऐसे कि जो बुजुर्ग नहीं, हर एक को साहिबे अजमत नहीं कहा जाता, हर एक को साहिबे अजमत, शेर सुन लीजिएगा, हर एक को साहिबे अजमत नहीं कहा जाता। और खबीज जैसे बहुत लफ्ज हैं जमाने में, हरामजादों को हजरत नहीं कहा जाता, हरामजादों को हजरत, जैसे बहुत लफ्ज हैं जमाने में। खबीस क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे हैदरी। मेरे लिए बहरहाल मोहब्बत मौला सलाम हरामजादों को हजरत नहीं बहुत से बूढ़े हैं ऐसे के जो बुजुर्ग नहीं, हर एक को साहिब अजमत नहीं कहा जाता। खबीस जैसे बहुत लफ्ज हैं जमाने में, हरामजादों को हजरत नहीं कहा जाता, हरामजादों को हजरत नहीं कहा जाता। और ये भी यहाँ से भी शेर सुन ले, 3 शेर और सुने कि हरामजादों को हजरत नहीं कहा जाता। मोहम्मद और आले मोहम्मद के बाबे शहरे इल्म तक कुछ लोग आते ही नहीं। सिर्फ मिसरों पे आते रहिएगा कि बाबे शहरे इल्म तक कुछ लोग आते ही नहीं। बुग़्ज़े हैदर से पता चलता है जाहिल कौन है, बुग़्ज़े हैदर से पता चलता है। अब शेर सुन लिया, अपनी जिम्मेदारियां शामिल कर लीजिएगा। बुग़्ज़े हैदर से पता चलता है
जाहिल कौन है और देखना हर दौर का काबिल होगा बेनकाब, देखना हर दौर का काबिल होगा बेनकाब, करबला बतलाएगी जहरा का कातिल कौन है, करबला बतलाएगी, देखना हर दौर का काबिल होगा बेनकाब, करबला बतलाएगी जहरा का कातिल, करबला बतलाएगी। देखिए इस शेर पे कहां तक पहुंचते हैं, शेर पेश करता हूं। करबला बतलाएगी जहरा का कातिल कौन है और बाद में करना भरोसा मस्जिदों की भीड़ पर, बाद में करना भरोसा मस्जिदों की भीड़ पर, पहले ये देखो आजादारी में शामिल कौन है, पहले ये देखो आजादारी में, बाद में करना भरोसा मस्जिदों की भीड़ पर, बाद में करना भरोसा। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आप इस वक्त इस तरह से सुन रहे हैं, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपकी समाअतों का कि बाद में करना भरोसा मस्जिदों की भीड़ पर, पहले ये देखो आजादारी में शामिल, आजादारी में शामिल कौन है। आ जाओ इनके दर तक ले जाओ जमानत जहरा की, आ जाओ इनके दर तक ले जाओ जमानत जहरा की, मौत से आगे भी जिंदा रखती है मोहब्बत जहरा की, मौत से आगे भी जिंदा रखती है मोहब्बत, मौत से आगे भी देखिए एक शेर मुझे सुनाना है और शायद आपकी याद रह जाए और इस महफिल का हक है कि वो शेर पढ़ा जाए। शेर पेश करता हूं। मौत से आगे भी रखती है मोहब्बत जहरा की, और कितना जरूरी कितना लाजिम है इनकी अजमत का बयां करता है कुरान में खुद अल्लाह भी मिदहत जहरा की, करता है कुरान में खुद अल्लाह भी मिदहत जहरा की, और इनके मुकाबिल आने वाला हर मैदान में हार गया, इनके मुकाबिल आने वाला हर मैदान में हार गया, दुश्मन के भी सर चढ़कर बोली है सदाकत जहरा की, दुश्मन के भी सर चढ़कर बोली है, दुश्मन के भी सर चढ़कर बोली है सदाकत जहरा की, और दीने खुदा इनका है बचाना इनकी जिम्मेदारी है, रखकर जान हथेली पर निकली है जमात जहरा की, रखकर। देखिए ये 3 शेर पढ़ने थे, यहां से आपको आपके हक का वास्ता, दीने खुदा इनका है बचाना इनकी मेरे लिए तारीफ है, दीने खुदा इनका है बचाना इनकी जिम्मेदारी है, रखकर जान हथेली पर निकली है जमात जहरा की। शरर साहब ये 2-3 शेर सुनाने थे, देखिए शेर सुन लीजिएगा कि दीने खुदा इनका है बचाना इनकी जिम्मेदारी है, रखकर जान हथेली पर निकली है जमात जहरा की, और इनके ही बेटे ने पिलाया हुर के लश्कर को पानी। शेर सुनिएगा, इनके ही बेटे ने पिलाया हुर के लश्कर को पानी, गुर्बत के आलम में भी जारी है सखावत जहरा की, गुर्बत के आलम में भी जारी है, गुर्बत के आलम में भी, गुर्बत के आलम में भी, गुर्बत के आलम में भी, आली आली आली, गुर्बत के या अब्बास या अब्बास, गुर्बत के आलम में भी जारी है सखावत। देखिए खास तौर से मुझे स्टेज से दुआएं चाहिए, और शायद ये शेर सुनाने के लिए मेरी हाजिरी हो गई हो, मौला कबूल करने। नैयर भाई फिर से शेर पेश करता हूं कि दीने खुदा इनका है बचाना इनकी जिम्मेदारी है, रखकर जान हथेली पर निकली है जमात जहरा की, इनके ही बेटे ने पिलाया हुर के लश्कर को। अबू ज़र भाई शेर पेश करता हूं, इनके ही बेटे ने पिलाया हुर के लश्कर को पानी, गुर्बत के आलम में भी जारी है सखावत जहरा की, और अपने जैसा एक पिसर इस वास्ते मांगा हैदर ने। शेर सुनिएगा, अपने जैसा एक पिसर इस वास्ते मांगा हैदर ने, कोई अमानतदार तो हो दे जिसको अमानत जहरा की, कोई अमानतदार तो हो, कोई अमानतदार तो हो, अपने जैसा एक पिसर इस वास्ते मांगा हैदर ने। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने जैसा एक पिसर इस वास्ते मांगा हैदर ने, अपने जैसा एक पिसर इस वास्ते मांगा हैदर ने, कोई एक शेर शहजादी की महफिल के बैनर से पढ़ता हूं कि कोई अमानतदार तो हो, अपने जैसा एक पिसर इस वास्ते मांगा हैदर ने, कोई अमानतदार तो हो,
कोई अमानतदार तो हो, दे जिसको अमानत। जहरा की और पर्देदारी जैनब और कुलसूम के दम से बाकी है। पर्देदारी जैनब और कुलसूम के दम से बाकी है। इनको जो बेचादर देखे उस पर लाना जहरा की। इनको जो बेचादर देखे, पर्देदारी जैनब और कुलसूम के दम से बाकी है। इनको जो बेचादर देखे उस पर लाना जहरा की। अपने जैसा एक पिसर इस वास्ते मांगा हैदर ने। अपने जैसा एक पिसर इस वास्ते मांगा हैदर ने। कोई अमानतदार तो हो, दे जिसको अमानत। अपने जैसा एक पिसर इस वास्ते मांगा हैदर ने। अपने जैसा एक पिसर इस वास्ते मांगा हैदर ने। कोई अमानतदार तो हो, दे जिसको अमानत जहरा की। कोई अमानतदार तो हो, दे जिसको अमानत। फिर कभी इंशाल्लाह। अपने जैसा एक पिसर इस वास्ते मांगा हैदर ने। कोई अमानतदार तो हो, कोई अमानतदार तो हो, दे जिसको अमानत जहरा की। न जाने कोई अमानतदार तो हो, दे जिसको अमानत जहरा की। न जाने कितने नशेबो फराज आए गए। न जाने कि देखिए आपका हुक्म है, मैं पढ़ता हूं, मेरा वक्त पूरा हो चुका, कि न जाने कितने नशेबो फराज आए गए। हुसैन वाले किसी से नहीं मिटाए गए। हुसैन वाले किसी से नहीं। तमाम शेर छोड़ता हूं, 2-3 शेर पढ़ता हूं। हुसैन वाले किसी से नहीं मिटाए गए। और हुसैन से कोई पूछे हबीब का रुतबा। हुसैन से कोई पूछे हबीब का रुतबा। बतौर खास ये खत भेजकर बुलाए गए। बतौर खास ये खत भेजकर हुसैन से कोई पूछे हबीब का रुतबा। बतौर खास ये खत देके आपको एक अलग मंजिल पे आना। बतौर खास ये खत भेजकर बुलाए गए। और हिसाब जुल्म का असगर ने मुस्कुरा के लिया। हिसाब जुल्म का असगर ने मुस्कुरा के लिया। जो कह कहो में मगन थे वो सब रुलाए गए। जो कह कहो में मगन थे, हिसाब जुल्म का असगर ने मुस्कुरा के लिया। जो कह कहो में मगन थे, जो कह कहो में मगन थे वो सब रुलाए गए। अब जितनी कुव्वत मेरे अंदर है शेर पेश करता हूँ। और एक किबला जवाब भी है इसमें, सुहेल शेर सुनना कि जो कह कहो में मगन थे वो सब रुलाए गए। और जमीन पे शेर का खत खींचना बताता है। जमीन पे शेर का, जमीन पे शेर का खत खींचना बताता है। किसी के खौफ से खेमे नहीं हटाए गए। किसी के खौफ से खेमे, जमीन पे शेर का खत खींचना बताता है। जमीन पे शेर का खत खींचना बताता है। किसी के खौफ से खेमे नहीं। देखिए ये शेर पहली बार पढ़ रहा हूं, और क्योंकि यही ये शेर भी हुआ है। शेर सुनिएगा, किसी के खौफ से खेमे नहीं हटाए गए। और वही जमीन है सजदों की मंजिले मेराज। भैया मैं शेर पेश करता हूं। वही जमीन है सजदों की मंजिले मेराज। हुसैन पुश्ते फरज से जहां गिराए गए। हुसैन पुश्ते फरज से, वही जमीन है सजदों की मंजिले मेराज। वही जमीन है सजदों की मंजिले मेराज। हुसैन पुश्ते फरज से जहां गिरा। अब ये आखिरी शेर शायद मुझ जैसा तालिब इल्म आप तक पहुंचा सके। और इस जश्न का हक है कि शेर पढ़ा जाए। शेर पेश करता हूँ, शरफ भाई शेर सुन लिएगा। नैयर भाई शेर पेश करता हूँ कि वही जमीन है सजदों की मंजिले मेराज। हुसैन पुश्ते फरज से जहां। अबू जर भाई एक अलग नौयत का शेर हुआ है, शेर पेश का। हुसैन पुश्ते फरज से जहां गिराए गए। और असीरे जुल्म तो आजाद हो गए, लेकिन असीरे जुल्म तो आजाद हो गए, लेकिन अजाबे सब्र के कैदी नहीं छुड़ाए गए। अजाबे सब्र के कैदी, असीरे जुल्म तो आजाद हो गए, लेकिन अजाबे सब्र के कैदी नहीं छुड़ाए गए। जमीन पे शेर का खत खींचना बताता है। किसी के खौफ से खेमे नहीं हटाए गए। अपने जैसा एक पिसर इस वास्ते मांगा हैदर ने। अपने जैसा एक पिसर इस वास्ते मांगा हैदर ने। अपने जैसा एक पिसर इस वास्ते मांगा हैदर ने। कोई अमानतदार तो हो, दें जिसको अमानत ज़हरा की।
वाह 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 वाह। मोमिनीन सुल्तानपुर महल रिजॉर्ट्स का ये जश्न खातून क़यामत, जश्न शहज़ादी जन्नत अपनी मेराज पे है। इस पे लग गया, ये लग गया, मत परेशान हो जाए। हाँ देखो हमारे होते हुए कैसे ग्राफ एजेंसी की कोई चीज़ कहीं गिर जाएगी। वो तो इसलिए गिर गया था कि कुछ मनहूस नाम आ गए थे तो वो गिर गया था। जैसे ही वो नाम हटे फ़ौरन आ गया। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो जो गया वो तो कहा था ना, क्या है हजरत नहीं लिखते है ना, वो अल्लाह उस पर गिरा था, मुझे सब पता है। उसके बाद फ़ौरन आ गया जैसे वो सब हटे। तो अब ये जो महल रिसॉर्ट्स का जश्न खातून जन्नत मुकम्मल हो रहा है। यूं तो मोमिनीन कराम दुनिया का कोई उजाला नहीं जो मौलाए कायनात का कसीदा ना पढ़े, दुनिया की कोई खुशबू नहीं जो शहज़ादी जन्नत की मिदहत न करे, दुनिया का कोई फूल फूल नहीं जब तक हसन और हुसैन का सनाखाना हो जाए। लेकिन इस बीइंग ह्यूमन बीइंग वर्ड्स में, ग्लोबल विलेज में भी हिंद महासागर के इस पार से लेके साइबेरिया के जजीरों के उस पार तक जहाँ जहाँ इंसान रहते हैं, कोई ख़ित्ता, कोई इलाक़ा, कोई जजीरा, कोई दयार ऐसा नहीं जहाँ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र दुनिया के हर मिनट पे, हर लम्हे पे, हर सेकंड में ना हो रहा हो। अगर यहाँ शाम हो रही है तो कहीं सुबह हो रही है, कहीं सुबह हो रही है, यहाँ शाम हो रही है, वहाँ अली अली हो रहा है, वहाँ हुसैन हुसैन हो रहा है। दुनिया के हर इलाक़े में मिदद होती है। एक इलाक़ा है नॉर्वे, वहाँ हमारे मोमिनीन भी रहते हैं, महफिलें भी होती हैं, मजलिसें भी होती हैं। ओस्लो में जश्न भी होते हैं, फ़ज़ाइल भी होते हैं, मसाइब भी होते हैं, मजलिसें भी होती हैं, ज़ाकिरीन भी जाते हैं, शुअरा भी जाते हैं। वहाँ रात को ठीक 12 बजे से पहले लोग इंतज़ार करते हैं, अलार्म लगाए रहते हैं, अपना बिस्तर, अपनी नींद, अपना काम काज छोड़ के, ऑफिस दफ्तर छोड़ के सब सड़क पे चले जाते हैं। क्यों? इसलिए कि रात को 12 बजे वहाँ सूरज दिखाई देता है, उसे कहते हैं मिडनाइट सन। फिर वापस चले जाते हैं और सोते हैं, थोड़ी देर के बाद सूरज चला जाता है, फिर सुबह को उठते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की महफिलों में जश्न खातून जन्नत 2025 का 12वां महीना, 12वें महीने की 12वीं तारीख, 12वीं तारीख के 12 बजे 12:12 पे सुल्तानपुर का एक एक बंदा अपने घर, दफ्तर, काम काज को छोड़ के महल रिजॉर्ट के अंदर आ रहा है। इसलिए कि वहाँ का मिडनाइट सन नॉर्वे में जो निकलता है उसे सूरज कहते हैं। हमारे इस जश्न का मिडनाइट सन, हमारे इस डाइस से जब तुलू होता है तो उसे खुर्शीद कहते हैं। तशरीफ़ ला रहे हैं मक़ते महफिल जनाब खुर्शीद हैदर मुज़फ़्फ़र नगरी। बहुत दूर से लेके आए भाई। हाँ, ये सुनिए, 12 रजब को यही गदीरी युवा फाउंडेशन और यही सुल्तानपुर और यही अमठ होगा और अली डे होगा। और चूंकि अली डे है तो दिन में होगा, तो यहाँ तो खुर्शीद जितनी देर के लिए उतनी देर के लिए उजाला है, वहाँ तो दिन भर खुर्शीद ही खुर्शीद रहेगा। नारे हैदरी, शेर भी नहीं पढ़ा, एक कता इन्हीं का मैं पढ़ दूं। नूरे ज़हरा वहां से लाए रसूल, उससे आगे कोई गया ही नहीं। फर्शे महफिल पे आ गई ज़हरा, तुम कहाँ हो तुम्हें पता ही नहीं। नहीं, मैं देखिए, मैं इख्तिसार के मायने जानता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, असल में ठंड का वक्त है और ये इब्तदा में ही ये गुफ्तगू हुई थी कि 12 बजे तक महफिल जो है हम तमाम कर देंगे। तो बहरहाल ये 12:10 हुई हैं, तो 10 मिनट मेरे हिस्से में आ गए, तो बहरहाल मैं भी सवाब में शामिल हो जाऊँ। हालांकि आपको पढ़ना था सबसे बाद में, मुझे पहले पढ़वा देते, सच्चाई है। अच्छा देखिए, इंशाअल्लाह तो मुलाहिदा फरमाए, बहुत जल्दी कोई शेर पढ़ देता हूँ भाई, आदत है। निछावर सितारों ने की है जिया तक, निछावर सितारों ने की है जिया तक,
दरे मुस्तफा से दरे मुर्तजा तक, बहुत अच्छा मतलब। निछावर सितारों ने की है जिया तक, दरे मुस्तफा से दरे मुर्तजा तक। ये क्या राज है एक रोटी की खातिर मलक आ गए हैं दरे सैयदा तक। शुक्रिया, चलिए आपने माहौल दे दिया। निछावर सितारों ने की है जिया तक, दरे मुस्तफा से दरे मुर्तजा तक, दरे मुस्तफा से दरे मुर्तजा तक। ये क्या राज है रोटी की खातिर मलक आ गए हैं दरे सैयदा तक, मलक आ गए हैं दरे सैयदा तक। बहुत शुक्रिया। देखिए ये तो नार्वे से लाए मुझे ढूंढ ढांड के जगह, इतनी दूर से शायर नार्वे पहुंच गए। बहुत शुक्रिया। अच्छा दो कते और उसके बाद एक मनकबत के जो आपके लिए ताज़ा होगी। चंद शेर बस मुलाहिजा फरमाए। उसको गासिब न क्यों कहें हम लोग, उसको गासिब न क्यों कहें हम लोग, उसको गासिब न क्यों कहें हम लोग। बिनते अहमद का हक दबाया है, बिनते अहमद का हक दबाया है। बाग जन्नत में जा नहीं सकता जिसने जहरा का बाग खाया है। जिंदाबाद खुर्शीद भाई, वाह वाह वाह। बाग जन्नत में जा नहीं सकता जिसने जहरा का बाग खाया है। और चार मिसरे इसी सिलसिले के कि कैसे हम उससे दोस्ती कर लें, कैसे हम उससे दोस्ती कर लें, कैसे हम उससे दोस्ती कर लें जिसने अहमद का दिल दुखाया है। बेशक बेशक। कैसे हम उससे दोस्ती कर लें जिसने अहमद का दिल दुखाया है। उसका पुतला जलाएंगे हम लोग जिसने जहरा का घर जलाया है। बेशक। उसका पुतला जलाएंगे हम लोग जिसने जहरा का घर जलाया है, जिसने जहरा का घर जलाया है। अब एक मनकबत के चंद शार मुलाहिजा फरमाए। इंशाअल्लाह तुम उड़ा लेते हो यार, और फिर मुझे मना करना पड़ता है। मैं उस दुनिया का आदमी हूँ, मैं क्या डिलीट कर दो खुदा। लेकिन आप कामयाब हो जाते। मुलाहिजा फरमाए। मतलब हाजिर खिदमत करता हूँ। देखिए कलीम भाई, मखसूस ये इनायत परवरदिगार है, मखसूस ये इनायत परवरदिगार, मखसूस ये इनायत परवरदिगार है, मखसूस ये इनायत परवरदिगार है। जहरा के खादिमों में हमारा शुमार है, जहरा के खादिमों में हमारा शुमार, जहरा के खादिमों में हमारा शुमार है। क्या लहजा है, मखसूस क्या ज़बान है। ये इनायत परवरदिगार है, जहरा के खादिमों में हमारा शुमार है। मुलाहिजा करें कि तूने किया शहीद जो रोजा बतूल का, तूने किया शहीद जो रोजा बतूल
बतूल का, ज़हरा के कातिलों में तेरा भी शुमार है, ज़हरा के कातिलों में तेरा भी शुमार है। ये शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि ज़हरा के कातिलों में तेरा भी शुमार है, तामीर हम को करना है रोज़ा बतूल का, आमीन इलाही तामीर हमको करना है रोज़ा बतूल का। ए आखिरी हुसैन तेरा इंतजार है, ए आखिरी हुसैन तेरा इंतजार है। ये शेर भी इसी सिलसिले का मुलाहिज़ा फरमाए, बुज़ुर्ग बैठ जाओ, मुलाहिज़ा फरमाए। तूने किया शहीद जो रोज़ा बतूल का, ज़हरा के कातिलों में तेरा भी शुमार है। हो जन्नतुल बक़ीना आबाद जब तलक, हो जन्नतुल बक़ीना आबाद जब तलक, आँखों की रोशनी भी हमें नागवार है, आँखों की रोशनी भी हमें नागवार है। शुक्रिया बहुत आपका। आँखों की रोशनी भी, क्या कहने भाई, बहुत शुक्रिया। आँखों की रोशनी भी हमें नागवार है। कुछ ऐसे शेर जो संजीदा भी हो और वाले पैगाम भी हो, इसलिए कोशिश की है। मुलाहिज़ा फरमाए। हो जन्नतुल बक़ी ना आबाद जब तलक, आँखों की रोशनी भी हमें नागवार है। काफी की दाद चाहता हूँ इस वक्त अहले इल्म का मजमा है। डॉक्टर साहब बताओ बताओ। बहुत शुक्रिया। दाद चाहता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। आँखों की रोशनी भी शरर भाई हमें नागवार है, मौला से कुछ भी मांगा न ज़हरा ने उम्र भर, मौला से कुछ भी मांगा न ज़हरा ने उम्र भर, फहरिस्त ख्वाहिशात में बस एक अनार है। वाह 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 वाह, अरे भाई बस एक अनार है क़िबला, फहरिस्त ख्वाहिशात में बस एक अनार है। बहुत शुक्रिया भाई कमर हैदर साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं आपको इस तीसरे जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत अच्छा, ये एक मन्नती महफिल है। शायद इसी महफिल के ज़रिए इसका इनॉग्रेशन हुआ था, इफ्तिताह हुआ था इस महल का, महल रेस्टोरेंट का। तो भाई मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको ख़ास तौर से। इलाही आमीन। मुलाहिज़ा फरमाए कि ज़हरा के खादिमों में हमारा शुमार है। भाई एक शेर पढ़ता हूं कि तक़सीम करके फौज को कासिम ने ये कहा, तक़सीम करके फौज को कासिम ने ये कहा, करके फौज को कासिम ने ये कहा, तुम पर हमारे बाप की ज़रबत उधार है, तुम पर हमारे बाप की ज़रबत उधार है, तुम पर हमारे बाप की ज़रबत उधार है। बहुत शुक्रिया। परवरदिगार सब्र है बेशक मेरा हुसैन, बेशक परवरदिगार सब्र है, सब्र है
बेशक मेरा हुसैन, और उसका भाई सब्र का परवरदिगार है, और उसका भाई सब्र का परवर। या अली बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अभी जादो चंद शेर और पढ़ देता हूँ, वक्त तो मुकम्मल हो गया। कौन सी? नहीं, और बहुत पुरानी हो गई, मुलायदा फरमा। हाँ हाँ, लहजा कभी मोहताज जमाना नहीं होता, वो शेर जो अच्छा हो पुराना नहीं होता। बहुत शुक्रिया। अब सुना दिया, सुना दिया। कौन सा? हाँ हाँ, अरे टूट गया, टूट गया, तारा टूट गया, टूट गया। इधर इधर इधर, अरे बाप रे बाप। ओके ओके, हैदर हैदर हैदरी हार पनाए बूजर बूजर। आइए क़िबला, मुलाहिज़ा फरमाएं भाई। हाँ, ये हक बनता है उनका, वाकई बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं। हाँ देखिए, ऐसा है और ना लाश दफनाई जा सकती है, और शेर ऐसा हो गया कि शेर भी क़यामत तक दफनाया नहीं जा सकता। पढ़ते रहेंगे, ताज़गी बनी रहेगी। मुलाहिज़ा फरमाएं। क़िबला, जिंदा रह सकते नहीं हम इश्क़ हैदर छोड़ के। मिस्र सानी देखिएगा। जिंदा रह सकते नहीं हम इश्क़ हैदर छोड़ के, जिंदा रह सकते नहीं हम इश्क़ हैदर छोड़ के, जिंदा रह सकते नहीं हम इश्क़ हैदर छोड़ के। मछलियाँ दम तोड़ देती हैं समंदर छोड़ के। बरजस्ता मतलब मछलियाँ दम तोड़ देती हैं समुंदर छोड़ के। बहुत शुक्रिया। देखिए, मुलाहिज़ा फरमाएं। जिंदा रह सकते नहीं हम इश्क़ हैदर छोड़ के, मछलियाँ दम तोड़ देती है समुंदर छोड़ के। बहुत शुक्रिया। ये शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि मछलियाँ दम तोड़ देती हैं समुंदर छोड़ के। हर जगह गाजी का परचम ताज़िये के साथ है, हर जगह गाजी का परचम ताज़िये के साथ है, हर जगह गाजी का परचम ताज़िये के साथ है। जा नहीं सकता बरादर को बरादर छोड़ के, जा नहीं। सुनिए एक शेर इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। जा नहीं सकता बरादर को बरादर छोड़ के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके लिए नए हैं ये शेर। जा नहीं सकता बरादर को बरादर छोड़ के, करबला मेरा मुकद्दर मुझको ले आया मगर, करबला मेरा मुकद्दर मुझको ले, करबला मेरा मुकद्दर मुझको ले आया मगर, जाऊंगा वापस दरे शब्बीर पे सर छोड़ के। अरे शब्बीर पे सर छोड़ के, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये शेर अच्छा था, ये शेर अच्छा। बहुत शुक्रिया। जाऊंगा वापस दरे शब्बीर पे सर छोड़ के, दामने ज़हरा की जानिब उनको करना था सफर, दामने
दामने ज़हरा की जानिब उनको करना था सफर, इसलिए आंसू रवाना हो गए घर छोड़ के, इसलिए आंसू रवाना हो गए घर छोड़ के। बहुत शुक्रिया। ये वक्त ऐसा ही है कि कुछ संजीदा शायरी कर देता हूँ जो आपकी फरमाइश है। बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, जुल्म के रुख पे खौफ तारी है, जुल्म के रुख पे खौफ तारी है। उसके बाद अशफाक की बारी है। थोड़ा सा बढ़ गया लेकिन हाँ चल जाएगा। अरे पर्चा वर्चा निकाल लिया उन्होंने। हो तैयारी है। मुलाहिजा फरमाए, ये आपकी फरमाइश है, पढ़ देता हूँ। ये आखिरी बरजा कलाम है, मुलाहिजा करें। जुल्म के रुख पे खौफ तारी है, जुल्म के रुख पे खौफ तारी है, जुल्म के रुख पे खौफ तारी है, कट गया सर बयान जारी है, कट गया सर बयान जारी है, सब्र से जुल्म का तकाबुल क्या, सब्र से जुल्म का तकाबुल क्या, एक शहंशाह एक भिकारी है, एक शहंशाह एक भिकारी है, जुल्म की नहर कब की सूख चुकी, जुल्म की नहर कब की सूख चुकी, आंसुओं की फुरात जारी है, आंसुओं की फुरात जारी है, नौ के नेज़ा पे है सरे शबीर, नौ के नेज़ा पे है सरे शबीर, कैसा राकिब है क्या सवारी, ये नया शेर है, कैसा राकिब है क्या सवारी, ये शेर भी सुनिए, कैसा राकिब है क्या सवारी है, उसने सजदे में सर कटाया था, उसने सजदे में सर कटाया था, उसकी अब भी नमाज जारी है। भाई शुक्रिया भाई, हो गया कोई इजाफे हो गए, शायरी है, बहुत बड़ी शायरी, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। उसने सजदे में सर कटाया था, उसने सजदे में सर कटाया था, उसकी अब भी नमाज जारी है, उसकी अब भी नमाज जारी है, लाशे बैत उठा के ले जाओ, क्या लहजा है, लाशे बैत उठा के ले जाओ, ये हमारी नहीं तुम्हारी है, ये हमारी
नहीं तुम्हारी है। दफन करना इसे यजीद के घर, दफन करना इसे यजीद के घर, करबला की जमीन हमारी है। यजीद के घर का एड्रेस भी बता दीजिए। करबला यजीद के घर का एड्रेस अगले शेर में बता दीजिए। जमीन हमारी है, वो ही जन्नत में जाएंगे खुर्शीद, करबला जिनको जान से प्यारी। अरे एक बार वैसे पढ़ दीजिए जिसमें एड्रेस आता है। हाँ। लाश बैत उठा के ले जाओ, ये हमारी नहीं तुम्हारी है, ये हमारी नहीं तुम्हारी है। दफन करना इसे सकीफा में, दफन करना इसे सकीफा में, करबला की जमीन हमारी है, करबला की जमीन हमारी है। अच्छा मैं 3 शेर और पढ़ दूं जब ऐसी बात। देखिए भाई शरर भाई, वो समझा था कि उससे डर गए हम, वाह, वो समझा था कि उससे डर गए हम, पहन कर तो उसके घर गए हम। सुनिए, वो समझा था कि उससे डर गए हम, पहन कर तो उसके घर गए हम, पहन कर तो उसके घर गए हम। मुलाहिजा फरमाए, तो उसके घर गए हम, तो उसके घर गए हम, हमारा प्यास से दम घुट रहा था, हमारा प्यास से दम घुट रहा था, मगर इस्लाम जिंदा कर गए। बहुत अच्छा, वाह। हमारा प्यास से दम घुट रहा था, मगर इस्लाम जिंदा कर गए हम। जो नेज़े पर न हम कुरान सुनाते, तो कातिल सोच लेता मर गए हम। क्या कहने, क्या उम्दा, वाह वाह वाह। हमारा प्यास से दम घुट रहा था, मगर इस्लाम जिंदा कर गए हम। जो नेज़े पर न हम कुरान सुनाते, जो नेज़े पर न हम कुरान सुनाते, तो कातिल सोच लेता मर गए हम। बिछाया फर्श गम कातिल के घर में, बिछाया फर्श गम कातिल के घर में, फर्श गम कातिल के घर में, जो नामुमकिन था मुमकिन कर गए हम। वाह 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 वाह। जो नामुमकिन था मुमकिन कर गए हम। बहुत शुक्रिया। 2 मिनट रुकिए जरा, दुआ वगैरह 2 मिनट रुकिए भाई। एक जो महफिल के, हाँ हाँ हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ जरा 2 मिनट बैठिए आप जरा। मैं तमाम अमर हैदर खान साहब के कुनबे कबीले के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना शानदार जश्न मुनक़िद किया। तमाम शोरा का शुक्रिया। और एक मतलब एक बैत पढ़ता हूँ। अब्बास करबला में जो मौला के साथ हैं, अब्बास करबला में जो मौला के साथ हैं, उम्मुल बनीन बकी में जहरा के साथ हैं, जिसका जश्न हमने इतने शानदार महल में किया, इतनी आराइश और ज़ेबाइश के साथ किया, इतने कीमती कालीनों में किया, इतने खूबसूरत शहनशीन पे, इतने उम्दा मिंबर पे जश्न किया, आज उसकी तुरबत पे साया नहीं है।
हमें चैन से नहीं बैठना चाहिए, एक दिन नहीं। मैं सलाम करता हूँ बकी ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता पूरी दुनिया के उनके अरकान को जो व्हाइट हाउस पर प्रोटेस्ट करते हैं, जो पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट करते हैं। मेरे साथ 5 बार आप नारा लगाएंगे, मैं कहूँगा रीबिल्ड, आप कहेंगे जन्नतुल बकी, और ताकि वो पूरी दुनिया में मैसेज जाए, रीबिल्ड 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 रीबिल्ड। ये दुनिया समझ ले कि जिस दिन जन्नतुल बकी करने का मौका हमें मिल जाएगा, बनाने का, तामीर करने का मौका मिलेगा, जिसके पास महल है वो महल बेच देगा, जिसके पास झोपड़ी है वो झोपड़ी बेच देगा, वो वहाँ मजदूरी करेगा इमाम ज़माना के साथ। मौला आप तशरीफ ले आइए, जन्नतुल बकी की तामीर कीजिए। और हमको चैन और सुकून नहीं, हम जश्न कर लेते हैं, खुशी का मौका है, लेकिन जिस शहजादी के लिए हम ये जश्न कर रहे हैं, जो खातून क़यामत हैं, जो शहजादी जन्नत हैं, उनके रोज़े पे कोई मतलब साहिबान है, कोई गुंबद नहीं है, कोई मीनार नहीं है। शहजादी आपका रोज़ा जल्द अज जल्द तामीर हो और हमें मजदूरी का शरफ हासिल हो, और इमाम ज़माना तशरीफ ले आए, उनके निगरानी में रोज़ा तामीर हो। एक बार शकील मौलाना खुल्ला काबा, उनके भाई फिरोज साहब अलील हैं, मैं चाहूँगा मेरे साथ आप 3 बार कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। पालने वाले हमारे जितने भी मोमिनीन अगर बीमार हैं तो जल्द अज जल्द शफा पा जाएं। बीमार करबला मौला सज्जाद का सदका, बीमार मदीना हजरत सोगरा का वास्ता। 4 शाबान को इंशाअल्लाह करबला मोहल्ला में मौला अब्बास की जरी के पास सरदाब में अर्रहमान टूर की जानिब से मौलाना अतर हैदर साहब की निगरानी में गुजर साहब भी होंगे, शरफ साहब भी होंगे, बैनुल अक़वामी जश्न बाबुल हवाइज मौला अब्बास का जश्न होगा। जो ज़ायरीन वहाँ मौजूद हों वो जश्न में शिरकत फरमाएं, और ज़रूर इसलिए कि मौला अब्बास के एकदम जरी के पास ये जश्न करना सबसे बड़ी शोरा के लिए अपने दरबार में अपने मौला, अपने सुल्तान, अपने बादशाह, अपने शहनशाह के सामने मदा करना, हम जैसे दरबारी शोरा, अहले मोहम्मद के दरबारी शोरा, हमारे लिए सबसे बड़ा शरफ है। और जो मोमिनीन न जा सकें वो लाइव ग्राफ चैनल पे जो है वो देखें और दुआ करें कि जल्द जल्द वो वहाँ पहुँचें। और इंशाअल्लाह 12 रजब को दिन में 2 जनवरी दिन में 11 बजे से हुसैनिया नौ तामीर में इंशाअल्लाह गदीरी युवा फाउंडेशन की जानिब से अली डे मुनक़िद होगा, हम सबकी हाजिरी होगी। आप सबसे गुजारिश है कि उसमें भी शिरकत फरमाएं। और जाहिर सी बात है, कब तक तेरी गर्दे फजाइल ढूंढते आखिर हम जैसे, सूरज के उस पार तेरा घर बेपर तायर हम जैसे, थक के अगली नस्ल को कागज और कलम दे जाते हैं, तेरा कसीदा लिखते लिखते सारे शायर हम जैसे। वक्त तमाम हुआ, मदह तमाम नहीं हो सकती। ये महफिल आइंदा साल तक के लिए शुक्रिया के अल्फाज के साथ मुलतवी की जाती है। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाह अशफाक भाई से गुजारिश है, अरे नहीं बैठो 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 बैठो, अरे बैठो बैठो बैठो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ हाँ, नारे अशफाकिया।